Assalamu alaikum. Thank you for joining, everyone. Welcome to another round of our exciting workshop on business canvas model. In this session, we have partnered with the students of our University of Karachi and is brought to you all by Circle Women Pakistan. Circle Women's mission is to advance women's economic participation and empowerment through innovative and entrepreneurship, advocacy campaigns, and research. We develop and support the entrepreneurial and leadership capacity of women and youth in Pakistan to bring about economic growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Karo, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is very critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are supported by Frederick Noman Foundation for Freedom, which aims to contribute to the enhancement of soft skills in the fields of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's session on business canvas model will be conducted by Talha bin Shuja, who is an entrepreneur, trainer, and mentor. He's currently working as a manager incubation center, industrial linkages and technology, Transferred University of Karachi. He has been featured in the prime time at Metro News to discuss the trend of entrepreneurship in Pakistan and has launched one of a kind series Startup Beta to promote entrepreneurship. He has successfully launched two startups, Kebabistan Restaurant and Asani Maintenance Services, for which he has won rupees 2.6 million in the category of ICT Internet of Things from USAID. He has been working in startup fraternity for more than 7 years and currently mentoring startups at Pakistan's top business and tech incubators. Let me welcome Mr. Talha to take the session forward from here. Assalamu alaikum. Thank you very much for a warm introduction. First of all, I would like to clarify a couple of things. This training session was supposed to be organized in physical setting as well or virtually, but due to COVID and increasing and the rise in the COVID cases, we have restricted all the participants to online participation only. क्योंकि business model canvas को समझने के लिए और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये 1-to-1 एक एक्टिविटी होती है. I'll try my level best कि इसको मैं इंटरेक्टिव रखूं और तमाम पार्टिसिपेंट से भी गुजारिश ये है कि वो टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रखें. जो भी सवालात हों, जो भी डिस्कशंस हों, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये मॉडल एक आपको स्किल सिखाएगा. इट्स नॉट लाइक टिपिकल कोर्स के जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूँगा और आप सुनेंगे. इसके अंदर आपको एक ऑन ग्राउंड रियलिटी का पता लगेगा on how to make a business plan for your startup. Okay. Let me share my screen first. उसके बाद फिर आगे करते हैं. अच्छा उमम, मुझे एक फाइल शेयर करनी है, तो मैं क्या चैट पे शेयर कर सकता हूँ ताकि सबको मिल जाए? Sure. Please go ahead. Okay. Okay. फाइल रीसेंड का बोल रहा है. ओके फाइन, लेट मी ट्राई अगेन. अनफॉर्चुनेटली सेंड नहीं हो रही है. इज देयर एनी अदर वे टू सेंड द फाइल? You can share it with me on WhatsApp. I'll try sharing it on my end. Okay, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार. I've shared the file with you, no? Give me 2 more minutes. एक फैकल्टी हैं, वो अपने क्लास को ज्वाइन करवाना चाह रही हैं. मैं उनको लिंक शेयर कर रहा हूँ.
Okay. So did you get the files? नो शूज ओके मम आप उसको ट्राई कर लीजिएगा. मेरे पास भी सेम इशू यही आ रहा है जो आपने अभी लिखा है. वो कनेक्टिविटी का कोई इशू दे रहा है कि वहां से वो अपलोड नहीं कर पा रहा है. नो शूज. मीनवाइल 2-3 प्रोफेसर से बात हुई है. दे आर आल्सो ज्वाइनिंग इन अपनी क्लास के साथ. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक सेशन, एक इंटरेक्टिव सेशन होगा. और थिंग्स आर डिफिकल्ट. वजह ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, बिकॉज हमारे पास इंटरनेट प्रॉब्लम्स रहती हैं, और स्टिल डिस्पाइट द फैक्ट हमारे पास इश्यूज काफी रहते ही हैं रिगार्डिंग इंटरनेट, रिगार्डिंग एवरीथिंग एल्स. तो it is very difficult to conduct online classes here in University of Karachi. So सर्कल वालों को मैं सबसे पहले एक तो मुबारकबाद दूंगा इस बात की कि आप लोगों ने सीरीज ऑफ सेशंस अरेंज करवाए, और हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि ये सेशंस को हम इंटरेक्टिव रखें और तमाम पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करवाएं, क्योंकि यहाँ पर ये कल्चर अभी तक डेवलप हुआ नहीं है. राइट नाउ अभी भी इतने मुश्किल हालात में भी फैकल्टी आर कंफर्टेबल हैविंग फिजिकल सेशंस. वो उसी पे चल रहे हैं. सिर्फ आउट ऑफ 72 डिपार्टमेंट्स, फ्यू डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस में जा चुके हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर प्रोग्राम. ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर प्रोग्राम, बिजनेस मॉडल कैनवस होता क्या है. सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे ट्रेनिंग की नीड क्यों है. होता ये है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग थिंकर, हमारे जहनों में एक आइडिया होता है कि जिंदगी में कभी ना कभी मौका मिलेगा तो हमने कुछ करना है. उस आइडिया को रियलिस्टिक टर्म्स में लाने के लिए वी नीड अ प्लान. अच्छा, अब उस प्लान बनाने के लिए हर किसी के पास वो स्किल सेट नहीं होता है कि उस प्लान को बना सके. माइट बी पॉसिबल कोई मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हो. देयर आर चांसेस कि कोई इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करता हो. कोई सोशल वर्कर हो सकता है, कोई रिसर्चर हो सकता है. तो entrepreneurs can be from diversified background. So for that you need to have a business plan to execute what you are going to do. बिजनेस प्लान बनाने के लिए 9 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिस पे आपको फोकस अगर आप कर लें तो आपका एक बिजनेस प्लान तैयार हो जाएगा. नाउ दिस प्लान इज यूजफुल फॉर मेनी थिंग्स. सबसे पहली चीज कि आपको क्लैरिटी मिलेगी ऑन व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर बिजनेस. सेकंड, आपको इस बात की क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, कि आपको चाहिए क्या बिजनेस में. हमने ऐसा अपनी लाइफ में बहुत दफा देखा है. मैंने स्टार्टअप्स को मेंटोर किया है, अपने स्टार्टअप्स को भी देखा है. उसमें ये इशू आता है, हमें लग रहा होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जबकि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हमें राइट टीम चाहिए होती है उस चीज को चलाने के लिए. तो हमें कैसे पता लगेगा व्हाट इज द नीड ऑफ दैट स्टार्टअप या बिजनेस जो हमें आगे लेके जाएगी. तो इस पूरे बिजनेस मॉडल कैनवस से ये पता लगेगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ दैट बिजनेस. फिर हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस का आइडिया होगा कि कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ हमारी वीकनेसेस हैं. ओके, सो मूविंग ऑन. अभी हम देख लेते हैं कितने पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आ गए हैं, उसके बाद फिर हम उसको थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे फिर. ओके, वी हैव 30 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ. तो आई थिंक इसको हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. सो जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैं वापस इसको रैप अप कर देता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट 2 आवर्स एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस बिजनेस मॉडल कैनवस फॉर द स्टार्टअप्स. सो बिजनेस मॉडल कैनवस एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप 1 पेज बिजनेस प्लान बना सकते हैं. नाउ सब सवाल आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि हम बिजनेस प्लान बना क्यों रहे हैं. नाउ बिजनेस प्लान कैन बी मेड फॉर मेनी रीजंस. सबसे पहले रीजन तो ये होना चाहिए कि यू शुड बी क्लियर इन योर विजन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर बिजनेस आइडिया, कि आपको आगे करना क्या लाइफ में उस बिजनेस आइडिया के साथ. हर किसी के जहनों में कोई ना कोई आइडिया सर्कुलेट कर रहा होता है, चाहे वो बिजनेस करे या ना करे. आई बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट इज अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर. लेकिन जो फीलिंग को हम उसको सप्रेस कर देते हैं, कि जब भी जो आप अपनी जो फीलिंग्स होती है हम उसको सप्रेस कर देते हैं, और इवेंचुअली हमारा जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है ना वो बाहर नहीं आ पाता. ठीक है,
उस एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए यू कैन हैव लाइक आप अपना 1 दिन 2 दिन लगाएं एंड यू कैन मेक अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल फॉर योर स्टार्टअप। कि पता लगे कि जो आइडिया आपके जहन में पिछले 4 साल से घूम रहा है कि मैं फलाना चीज करूंगा या करूंगी, तो क्या वाकई में उसकी वायबिलिटी है या नहीं है, क्या आपके पास उसके लिए राइट टीम है, क्या आपके पास उसके लिए राइट रिसोर्सेज मौजूद हैं या नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर बिजनेस आइडिया, उसको आगे ले जाने के लिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, इफ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी वो 2 2 दिन बैठ के पूरी बातें सुने। They'll just give you 30 seconds, 1 minute or 2 minutes to explain the business idea कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं आगे। अगर उनको 30 सेकंड्स में समझ में आ गया आपका बिजनेस, तो इवेंचुअली दे विल सिट विद यू एंड गेट टू नो मोर डिटेल्स फ्रॉम यू, ताकि वो आगे इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस मॉडल 30 सेकंड्स में या 1 मिनट में समझा नहीं पाए, तो आपके हाथ से वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। अब वो उस पूरे बिजनेस मॉडल को, उस बिजनेस आइडिया को 30 सेकंड्स में बंद करने के लिए आपको बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है। सो टू स्टार्ट विद, हम काम करते हैं बिजनेस मॉडल कैनवस पे, जो कि एक सर्टिफाइड और एक रिसर्च ओरिएंटेड ये एक मॉडल है कि जिसकी बेसिस पे आप अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं। ओके, बिजनेस मॉडल कैनवस का जब हमें अंडरस्टैंड हो गया कि व्हाट इज नीड ऑफ द बिजनेस प्लान, अब हम इसके ऑपरेशंस पे आते हैं और हम बात करेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस मॉडल कैनवस। बिफोर दैट मैं चाहूँगा कि कुछ वॉलंटियर्स जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो बताएं कि उनका बिजनेस आइडिया क्या है, या वो किस बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं। रीजन बीइंग कि ये कोई एक ऐसा लेक्चर नहीं है कि इसमें आपको मैं मोटिवेशनल बातें बताऊंगा, एग्जांपल्स शेयर करूंगा तो इवेंचुअली आपको कुछ आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल एक बेस्ड एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप अपना पूरा बिजनेस प्लान बना सकते हैं। तो फॉर दैट आई नीड योर रिस्पॉन्स। कोई वॉलंटियर कर बताए कि वो कौन सा स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहा है और किस स्टेज पे पहुंच चुका है। जी, कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? एंड आई होप कि आपको ये जो फाइल स्क्रीन में नजर आ रही है ये आप लोगों को मिल भी चुकी है। अगर आप लोगों को ये फाइल रिसीव हो गई है तो काइंडली मुझे कंफर्म भी कर दें। अगर नहीं मिली तो आई विल ट्राई अगेन टू सेंड यू। आई डोंट नो उसमें क्या इशू कर रहा है। ओके, कोई पार्टिसिपेंट वॉलंटियर करना चाहेगा? जी, we have 32 participants on board, 33 in fact. Yes, अगर आप बोलना नहीं चाहे तो you can write response on the chat as well, ताकि ये देखें जब तक आप इसमें इंटरेक्ट नहीं करेंगे ना, उसमें आप बिजनेस मॉडल बना नहीं पाएंगे। इट कैन बी एनीथिंग, आप जरूरी नहीं कि आपने वो बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूट कर दिया हो। इफ यू वांट टू मेक अ स्पेसशिप दैट गोस इनटू मार्स, आप बताएं उसको, हम उसके बारे में बिजनेस प्लान बनाएंगे। बिजनेस प्लान आपके बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए। इट विल बी टेलर्ड एज पर द नीड्स ऑफ योर बिजनेस। मैं जनरल बता दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ उसको शेयर करना बहुत जरूरी है। आई ऑल्सो हैव एग्जाम्पल ऑफ उबर कि उबर का अगर स्टार्टअप होता जो कि जमाने में था, उसने अगर बिजनेस प्लान बनाया है तो किस तरह बिजनेस प्लान बनाया है एंड हाउ टू गो अबाउट इट। जी, ठीक है, चले मैं ही इस पर एग्जाम्पल आगे ऐड कर देता हूँ। नो इशूज दैट। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी वो शाय होते हैं एंड दे आर वेरी रिलेक्टेंट टू शेयर सम आइडियाज। दे थिंक के लोगों को मजाक उड़ाएंगे और वो थोड़ा सा एक हमारा एनवायरनमेंट ये सब बना हुआ है कि वी डोंट एनकरेज पीपल टू टॉक अबाउट बिजनेस एंड शेयर आइडियाज। अगर आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो जब 4 5 साल की एज में होते हैं तो दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उनको ये परवाह नहीं होती कि हमारी बेइज्जती होगी या नहीं होगी, बस वो सवाल पूछते हैं कि चांद गोल क्यों है, आज मतलब कि दिन में रोशनी क्यों हो रही है, रात में अंधेरा क्यों हो जाता है। सो दे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जब भी उन बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है दैट इज द मैक्सिमम,
दैट इज व्हाई वी से कि जो 5 साल तक का जो एज ग्रुप होता है, दैट इज स्पंज पीरियड, जहाँ पे वो एब्जॉर्बिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो इफ अगर अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपकी ही लर्निंग में वो हिंड्रेंस बनेगी. So learning is always a two-way process. No issues with that. Okay. Okay. ये मरियम साहिबा ने पूछा है, thought about small hotel business. अच्छा, होटल बिजनेस की जब बात कर रही हैं तो बट नेवर प्लान. ओके, होटल बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय होटल बिजनेस? मतलब कि उसमें रूम्स रेंट आउट करेंगी आप, या इट्स अ रेस्टोरेंट और काइंड ऑफ थिंग? इसको थोड़ा सा आप इलैबोरेट कर दें मरियम, के आप होटल, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट होटल, इज इट अ होटल लाइक मूविंग और शेराटन होटल, और रेस्टोरेंट लाइक KFC और मैकडॉनल्ड्स? Okay, restaurants. So, personally, if I talk about myself, I had a restaurant back in 2018. 4 साल मैंने चलाया उसको by the name Kebabistan, और I started my restaurant having no knowledge of the food industry. Obviously, startup की knowledge थी, business की knowledge थी, but food industry कोई मेरे पास knowledge नहीं थी. So back then, I also made a one-page business plan for myself to got to know my journey, my directions should be very clear. So अगर आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाह रही हैं तो उसमें you need to understand some key components. So let's make a business model for a restaurant. Okay. उसके बाद फिर हम उबर की भी एग्जांपल शेयर करेंगे कि अगर उबर एक स्टार्टअप होता और किसी ज़माने में था तो उसने अगर वो अपनी बिजनेस का मॉडल बनाता कैसे बनाता. So my brother did hotel management, so we went to help him. So we want to help him. Okay. So उन्होंने होटल मैनेजमेंट कोर्स किया है. अच्छा देखिए, होता क्या है, आई नो मुझे होटल मैनेजमेंट का बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या है कि there are two kinds of skills that you need if you're starting a startup or a business. पहली चीज तो ये होती है कि उसकी टेक्निकल नॉलेज. टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या है कि अगर इफ यू टॉक अबाउट रेस्टोरेंट्स, तो उसमें खाना पकाना कौन करेगा, उनके लोगों को कौन मैनेज करेगा, जो ऑपरेशंस जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में बात होती है, जो कोर एरियाज उसके बारे में बात होगी. लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट अ स्कूल, तो वहाँ पे जो करिकुलम डिजाइन होगा, जो टीचर्स की हायरिंग होगी, टीचर्स को मैनेज करना, दैट इज अ स्किल. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट फैशन डिजाइनिंग, बुटीक की बात करते हैं, कि अगर वो सना सफीना की बात करते हैं, तो उनकी एक टेक्निकल चीज क्या है कि वहाँ डिजाइनिंग हो गई, उस कपड़े को देखना, उस कपड़े को बनाना, वो तमाम चीजें हो गई. तो एक होता है बिजनेस का टेक्निकल एस्पेक्ट, ठीक है, वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आता है, हर बंदा अपनी फील्ड में बड़ा एक्सपर्ट होता है. लेकिन एक होता है उसका एक बिजनेस एस्पेक्ट, कि बिजनेस के जो रूल्स अबाउट्स हैं और उसके जो तमाम चीजें हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है. यहाँ हम बात करेंगे, ज्यादा हम बात करेंगे कि वी आर अज्यूमिंग दैट यू आर वेरी गुड एट द टेक्निकल स्किल्स दैट यू आर गिविंग इन योर बिजनेस. अगर आप रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो आपके भाई ने जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है. डेफिनेटली ही इज वेरी वेल इक्विप्ड विद द टेक्निकल स्किल्स. ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी टेलर की बात करते हैं, कोई डिजाइनर टेलर है, तो वो अपने टेलरिंग में बड़ा मास्टर है, लेकिन हाउ टू गेट द कस्टमर्स, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. सो हम स्टार्ट करते हैं विद द बिजनेस मॉडल कैनवस. इसके 9 कंपोनेंट्स हैं. तो पहला कंपोनेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द कस्टमर सेगमेंट्स. अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रीम राइट पे अगर आप देखें तो कस्टमर सेगमेंट की हम पहले बात करेंगे. इसको आप अगर चाहें तो मार्किंग भी कर लें. अगर आपने मार्किंग नहीं की हो तो आई विल गिव यू द हैंडआउट्स जो मेरे पास मौजूद हैं जिसमें मार्किंग हुई हुई है, वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट यू कैन हैव दीज फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. कि इसकी जो नंबरिंग और जो उसका ऑर्डर होगा ना, दैट इज अ बिट डिफरेंट जो उसमें लिखा हुआ है. पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कस्टमर सेगमेंट्स की. रीजन बीइंग कि ट्रेंड जिस तरह मैंने लास्ट एक सेशन किया था उसमें बात किया था हमने हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस की हमने बात की थी, तो उसमें भी हमने यही बात की थी कि बिजनेस ऑफन क्या करते हैं कि पहले एक प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसको बेचने के लिए ढूंढेंगे इसके लिए बनाना है. लेकिन एक्चुअल जो मॉडल बनता है और पहले हम कस्टमर्स आइडेंटिफाई करते हैं. वी आइडेंटिफाई दी टारगेट ऑडियंस, कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी होनी चाहिए.
आफ्टरवर्ड्स उसके हम आगे जाएंगे। सबसे पहले हमने ये सोचना है, अगर आप भी, आप जो तमाम चीजें सोच रहे हैं जिस बारे में आपके जहन में आइडिया घूम रहा है कि जैसे आपने कहा कि मुझे रेस्टोरेंट बनाना है, तो पहला सवाल आपसे मेरा ये होगा, आइडेंटिफाई योर कस्टमर सेगमेंट्स। उस कस्टमर बेस को आइडेंटिफाई करें कि कौन वो लोग हैं कि जो आपका रेस्टोरेंट देखेंगे। लेट्स सपोज आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ माय ओन रेस्टोरेंट व्हिच वाज कबाबिस्तान। वो रेस्टोरेंट एक मीडियम टियर के लिए रेस्टोरेंट था। इट वाज बहुत हाई एंड भी नहीं था और बहुत लो एंड भी नहीं था। तो we targeted middle class family belongs to Gulshan Iqbal, Gulstan Jor and Nazrabad population. So you need to identify the customer segments that you are going to target. अगर मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपने जो जो चाय पराठा बड़ा मशहूर होता है पठान का, जो ढाबे खुले होते हैं कोयटा होटल्स के नाम पे, तो व्हाट डू यू थिंक उसका टारगेट मार्केट क्या होगा, कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होगा? कस्टमर सेगमेंटेशन इज वेरी डिफरेंट। ओके, तो मैं इसी में ऐड करता हूँ कि अभी पूछा है मिस फरिया ने अबाउट, कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट ऑनलाइन बिजनेस। बिल्कुल, ऑनलाइन बिजनेस के बता सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस पे भी देखें, ऑनलाइन करना बिजनेस या फिजिकल करना, ये एक मोड ऑफ बिजनेस है। जस्ट लाइक इफ यू वांट टू रीच योर यूनिवर्सिटी, योर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम योर होम, तो आपका गोल क्या होगा? आपका गोल बीच की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, आपका गोल होगा कि मुझे यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है टाइम पे। अब द मोड दैट यू आर यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल आप करीम यूज कर रही हैं, आपके कोई घर वाले आपको ड्रॉप कर रहे हैं गाड़ी में या बाइक पे ड्रॉप कर रहे हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रही हैं, ठीक है, या आप किसी फ्रेंड के साथ वहां तक ड्रॉप हो रही हैं, तो ये सारे मोड्स हैं। लाइकवाइज डूइंग अ बिजनेस ऑनलाइन या बिजनेस ऑन अ फिजिकल सेटिंग इज अ मोड ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई हु इज योर टारगेट मार्केट। फिर आपने देखना है कि वो मेरे मोड से वो सेट हो रही नहीं हो रही है। लेट्स सपोज कि अगर आप बात करते हैं कि अगर ऑनलाइन में भी आपको टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू सेलिंग स्कार्फ्स, अगर आप जो खवातीन स्कार्फ लेती हैं अगर आप वो सेल कर रही हैं ऑनलाइन, तो द टारगेट मार्केट दैट यू आर केटरिंग इज फीमेल्स जो कि स्कार्फ लेती हैं और जो पर्दा करती हैं, मोस्टली वो वाली होंगी। अगर इस टाइम पे अगर आपने कस्टमर सेगमेंटेशन नहीं की और आपने मार्केट सबके लिए आपने ओपन कर दी, तो डू यू थिंक कि बॉयज जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे इस बिजनेस के अंदर? डेफिनेटली नॉट। शायद दो चार आ जाएंगे अपने बहन और अपने वाइफ और अपने मदर के लेने के लिए, लेकिन उनका सेगमेंट बहुत छोटा होगा। यू नीड टू आइडेंटिफाई हु इज योर टारगेट मार्केट और आपका कस्टमर सेगमेंट कौन सा है। और कस्टमर सेगमेंट को भी पूरा आपको डिफाइन करने की जरूरत होती है कि उसकी आपने कस्टमर प्रोफाइलिंग करनी होती है कभी। और अगर हम हमारे पास टाइम हुआ सेशंस में कभी और तो कस्टमर सेगमेंटेशन पे भी, कस्टमर प्रोफाइलिंग पे अलग से पूरा एक कोर्स होता है कि आपने कस्टमर फाइलिंग कैसे करनी है। तो इसको सिर्फ उसमें कट इन शॉर्ट अगर हम बताऊं तो आपको एक ब्रीफ कस्टमर का आपने एक आसान अल्फाज में उनका एक डायनामिक्स डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, उनकी एथनिसिटी, उनकी जो क्या वो मिडिल क्लास से हैं, क्या वो लोअर मिडिल क्लास के हैं, क्या वो एलीट क्लास है। तो आपने तमाम चीजें डिफाइन करनी है, ओनली देन फिर आप आगे चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने दो एग्जांपल डिस्कस की, एक रेस्टोरेंट के लिए डिस्कस की ऑन कस्टमर सेगमेंटेशन, एक हमने ऑनलाइन बिजनेस के लिए डिस्कस की है। सिमिलरली एक हम डिस्कस कर लेते हैं एक इंटरनेशनल एग्जांपल भी, व्हिच इज द ऊबर की। अगर हम बात करते हैं, इफ यू थिंक कि हम अगर हम बात करते हैं कि ऊबर की क्या होगी कस्टमर सेगमेंट्स, कोई बताना चाहेगा? उबर के कौन से होंगे उसी कस्टमर सेगमेंटेशन? एनीवन? ओके, उबर के जो ज्यादातर जो कस्टमर बेस होगा वो होगा कि जिनके पास उसमें मल्टीपल उसके सेगमेंट बन सकते हैं। एक तो उबर बहुत एलीट को कभी भी टारगेट नहीं करेगा। द पीपल हु हैव देयर ओन कार एंड ड्राइवर एट होम, वो बहुत ही कोई रेयर केस होगा कि वो यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पास गाड़ी है या वो रश को अवॉइड करना चाह रहे हैं, या पीपल हु यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, एक और बात, हम इसमें अगर आपको बोलूं कि हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाला बंदा जो है वो उबर का कस्टमर हो सकता है, क्या ये सही है? आई बिलीव नॉट। उसकी वजह ये है कि द पीपल हु आर गोइंग थ्रू लोकल बस या वो चिंची में सफर कर रहे हैं, जिसका किराया जो फेयर जो है दैट इज
30 to 40 रुपीज वो कभी भी ऊबर यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ऊबर इज एक्सपेंसिव। हाँ, लेकिन जो रिक्शा यूज कर रहे हैं, जो लोग टैक्सी यूज कर रहे हैं, दे कैन स्विच टू ऊबर। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कस्टमर सेगमेंट कि कौन आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज करेगा। आई होप ये वाला सेगमेंट हमने इसको सही से कैटर कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट पार्ट, वो हमारा है दैट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन। अगर आप देखें मिडिल पे, इफ यू सी इन द मिडिल, वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन की अगर बात करते हैं कि व्हाट वैल्यू आर वी प्रपोजिंग टू आवर कस्टमर्स, हमने कस्टमर आइडेंटिफाई किया, उस कस्टमर को जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसको हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन टू यू अगेन कि अगर कोई इसमें इनपुट करना चाहे, अगर हम रेस्टोरेंट की अगर एग्जांपल देते हैं, इफ यू टॉक अबाउट देसी रेस्टोरेंट, जो कि एक देसी रेस्टोरेंट है और दे आर गिविंग कढ़ाई, बारबेक्यू एंड प्लेटर्स सर्व कर रहे हैं वो लोग, तो व्हाट डू यू थिंक कि उनका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगा? इज इट प्योरली द फूड? अच्छा, डू यू थिंक रेस्टोरेंट्स की जो वैल्यू प्रोपोजिशन वो फूड होती है सिर्फ, कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फूड बहुत अच्छा होगा, तो सिर्फ फूड ही इज द ओनली थिंग कि जो वो वैल्यू प्रपोज कर रहे होते हैं, और इज देयर समथिंग एल्स? आई वुड बिलीव कि मुनीबा अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो ये आपकी लर्निंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगी। इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन रेस्टोरेंट या अपने भाई को हेल्प करना चाह रही हैं, तो उसमें व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर द कस्टमर बेस, के उस कस्टमर्स के लिए आप क्या वैल्यू प्रपोज कर सकती हैं? डू यू थिंक अ टेस्टी फूड इज द ओनली ऑप्शन? ओके, मरियम ने कहा बिल्कुल, एनवायरनमेंट, सिटिंग प्लेस, डेफिनेटली एम्बियंस कह लें, क्लीनलीनेस, हाइजीन, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं दैट द कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर। अगर आप देखें कि इफ यू टॉक अबाउट द देसी फूड, जिसमें हम कढ़ाई भी होती है और डिफरेंट प्लेटर्स होते हैं, आप कभी घर पे लाके खाएं, आपको कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि देसी रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो उसका एक जो एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा मैटर करता है। कि आप जो है दो जगह की बात करें, वी हैड रेस्टोरेंट, आपको फिलहाल मेरे खास क्लोज कर दिया इसको, आई नो, कुलाची, वी हैड कुलाची कबाबजी, तो वहां का जो एनवायरनमेंट था दैट वाज द सेलिंग पॉइंट। आप वही फूड घर पे लाके खाएं, आपको मजा नहीं आएगा, यू वोंट बी पेइंग 1000 रुपीज फॉर अ कबाब इफ यू, अगर आप उसको टेक अवे करा लें, ठीक है। वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां की जो एक ठंडी हवा है, वहां का जो एक ओवरऑल एक एम्बियंस है, द कस्टमर सर्विस दैट दे आर गिविंग इज व्हाट यू आर पेइंग फॉर। दैट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन दैट यू आर प्रपोजिंग टू द कस्टमर्स, कि आप हमारे पास आ रहे हैं तो हम आपको बादशाह या हम आपको शहजादा या शहजादी बना के रखेंगे, ठीक है। हम आपकी आदत, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इट इज फेमस, एक 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 वो बात है जिसमें बोलते हैं कि कस्टमर को इतना बिगाड़ो कि वो घर पे जाके नखरे करे, उसको इतना पैम्पर करो कस्टमर को, दैट इज अ लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस दैट यू हैव टू गिव टू द कस्टमर्स। जब भी वो आपके पास बार बार आएंगे, फूड तो उनको हर जगह मिल जाएगा। डू यू थिंक कि कबाबची कुलाची के जो फूड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कि अगर हम बर्गर्स की बात करें, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का बर्गर्स सिमिलर होता है, लेकिन हम फिर भी चूज करते हैं उस रेस्टोरेंट में जाना, क्योंकि द एनवायरनमेंट इज सो प्लीजिंग एंड इनवाइटिंग कि आप बार बार वहां जाना पसंद करते हैं। So this is a level of value proposition that we have to think कि हम उसको क्या वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं। Similarly, if we talk about Uber, क्या Uber खाली आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहा है? They are providing you sense of security. वो एक फील देता है आपको कि आप जब उबर में की गाड़ी में बैठे हैं तो यू आर मॉनिटर्ड बाय द इंटरनेशनल कंपनी, नेशनल ब्रांड, और वो आपको एक आगे लेके जा रहा है। यू फील प्रिविलेज्ड कि मैं एक आराम से जा रहा हूँ, अपनी मीटिंग में जा रहा हूँ या अपनी किसी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो मैं मुझे अच्छा फील होता है, वो आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। लाइकवाइज अगर आप बात करें तो जो करीम और उबर का जो मॉडल था फॉर द ड्राइवर्स, उन्होंने ड्राइवर्स को नाम दिया कैप्टन का। क्यों नाम दिया? काम तो एक ही है, सब ड्राइवर्स बने हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने कैप्टन का नाम दिया, एवरीबडी इज नाउ फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड कि यार मैं कैप्टन हूँ करीम का, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ। आई एम ड्राइविंग अ कार फॉर करीम, लेकिन स्टिल मेरे नाम से कैप्टन आ रहा है, तो मैं फील कर रहा हूँ कि यार कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ,
ठीक है। तो अगर यहाँ होता है कि ड्राइवर्स के नाम से नाम होता तो कभी भी बहुत सारे लोग उसमें ऑप्ट नहीं करते। जब भी आपने लिखा है कि ड्राइवर्स की इतनी क्वांटिटी बढ़ गई, कस्टमर्स ज्यादा ड्राइवर बन गए थे, एक वक्त ऐसा आया था। बहुत सारे लोग हु आर मैनेजर्स एंड सीनियर मैनेजर्स, वो जब जा रहे होते हैं ऑफिस से तो वो अपनी राइड ऑन कर लेते हैं और लोगों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं। हर बंदे के इशूज हैं, हर बंदे के मसले मसाइल हैं, तो उसको अच्छा फील हो रहा है कि मैं एक बुरी चीज नहीं है। अगर हम ऑनलाइन सर्विस की बात करते हैं, अच्छा, वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर ऑनलाइन सर्विस का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जब आप किसी फिजिकल सेटिंग में होते हैं तो वैल्यू को जज करना इज वेरी इजी। ठीक है, अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और मैं आप लोगों से चीज डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट विद यू। अगर आप फिजिकल सेटिंग में होते तो मैं आपके पास आके आपको ये डॉक्यूमेंट जो मेरे पास मौजूद हैं इसके आपको आपके हाथ में पकड़ाता, आपसे फिल आउट करवाता। आई आई वुड मेक श्योर कि आप तमाम लोग फिल आउट करें और कुछ सीख के जाएं। बट इन अ वर्चुअल सेटिंग बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर स्लीपिंग इन द क्लास राइट नाउ। तो जो इंटरेक्शन होती हैं वो बड़ी लिमिट हो जाती हैं। तो सिमिलरली जब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वैल्यू फॉर द कस्टमर। अच्छा, एट टाइम ऐसा होता है कि आप वैल्यू कुछ प्रपोज कर रहे होते हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, फिर एक गैप क्रिएट होता है और कस्टमर जो है ना वो डिससेटिस्फाई होता है। ठीक है, अब ये उस प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है जो आप चीज दे रहे हैं, या ये चीज उसकी एक्सपीरियंस में भी हो सकती है कि आपने मुझे डिलीवर की, वो डिलीवर 2 दिन में होगी, वो डिलीवर हुई 10 दिन के बाद। प्रोडक्ट बहुत अच्छा था लेकिन डिलीवरी की वजह से वो आपका जो है ना वैल्यू जो है पूरी खराब हो गई। सिमिलरली आपने चीज यहाँ से बिल्कुल सही भेजी, जब तक उसके पास पहुंची तो वो बिल्कुल ही ब्रेक होकर पहुंची, वो डैमेज हो गई चीज, वो एक मसला। सो ऑनलाइन के अंदर वैल्यू प्रपोज करना इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, वेरी मतलब कि वेरी वेरी डिफिकल्ट आई वुड से। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह इसको आपने पॉइंट्स आपने मेंशन करने होंगे कि व्हाट वैल्यू आर यू प्रपोजिंग टू द कस्टमर एंड यूजर्स। कोई सवाल अगर हो रिगार्डिंग वैल्यू प्रोपोजिशन एंड कस्टमर सेगमेंट्स तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू मार्क योर अटेंडेंस, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जितनी यहाँ पर आएगी उतना जो है हमारे पता लगेगा कितने लोगों ने अटेंड किया है, एंड when we can interact with you for the future sessions as well। जी, कोई सवाल किसी का रिगार्डिंग कस्टमर सेगमेंट्स एंड वैल्यू प्रोपोजिशंस? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहले हमने काम क्या किया? पहले हमने काम किया कि हमने कस्टमर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, हु आर आवर कस्टमर्स। दूसरा हमने काम किया कि हम उन कस्टमर्स के लिए क्या वैल्यू दे रहे हैं, क्या वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं उनको। द थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू डू इज द चैनल्स। अगर आप देखेंगे ये बॉटम में चैनल लिखा हुआ है, चैनल्स। चैनल्स क्या होता है? ओके, मिस अरीबा का मैसेज आया है, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस। अच्छा मिस अरीबा, बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है। आप जो है फेसबुक पेज बनाए, बिजनेस स्टार्ट हो गया। मेन चीज है कि उसका बिजनेस प्लान बनाना, आपने उस बिजनेस में करना क्या है। हमेशा से आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट एन आइडिया, उनके लिए ये सवाल होता है हम बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। और मैं आपको ये बात, आप मेरी बात को लिख लें कहीं पर भी है, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है, उसको चलाना सबसे मुश्किल है। क्योंकि स्टार्ट करने में क्या है, आपने फेसबुक का पेज बनाया विद द नेम अरीबा बिजनेस क्लोथिंग कंपनी, और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। उसमें आप कस्टमर कैसे लेकर आना है, उसमें सप्लायर कैसे लेकर आना है, उसमें आपने वैल्यू स्ट्रीम कैसे बनाना है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एग्जैक्टली, दिस शुड बी अ क्वेश्चन, हाउ टू मेक कस्टमर्स, हाउ टू मेक द कस्टमर एक्सपीरियंस मोर फ्रेंडली, कैसे वेंडर्स को लाना है, कैसे डिलीवरी करानी है, कैसे कस्टमर से इंटरेक्ट करना है। ठीक है, कैसे उनके लिए वैल्यू प्रपोज करनी है, कैसे कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अलीबा, दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हम इसी में बात कर रहे हैं। हम ऑनलाइन क्लोथिंग के भी एग्जांपल अभी लेते हैं। इसके अंदर हमने 2 चीजों के बारे में बात की है, एक हमने कस्टमर सेगमेंट के बारे में बात की है। आपने अपने ऑनलाइन क्लोथिंग के लिए पहले चूज करना है कि हु इज योर टारगेट मार्केट, कौन लोग, आप कौन से लोग, ऐसे जो लोग हैं आप उनके लिए, फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग अबायास, तो उनकी टारगेट मार्केट एक स्पेसिफिक होगी
इफ यू आर मेकिंग वेस्टर्न क्लोथिंग फॉर फीमेल्स तो उसकी टारगेट मार्केट टोटली डिफरेंट होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज योर कस्टमर सेगमेंट, हु इज योर, आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है. फिर उसके बाद आपने देखना है कि व्हाट वैल्यू आर यू गिविंग टू दोस कस्टमर्स. तीसरी चीज फिर हम आती है कि चैनल्स, थ्रू विच चैनल्स आर यू गिविंग द वैल्यू टू द कस्टमर्स. चैनल क्या होता है? चैनल्स आर दोज थिंग्स, मैं इसमें लिख भी देता हूं यहाँ पे ताकि आपको चीज याद भी रहे. कस्टमर सेगमेंट, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल ब्लैंक चीज लगेगी है तो वो चीज जहन से निकल जाती है. व्हाट कस्टमर्स. हम आते हैं चैनल्स पे. जब चैनल्स पे आते हैं, टू विच वैल्यू टू कस्टमर्स. ये तमाम चीजें इंटरकनेक्टेड हैं. अगर कहीं भी कोई लॉस हो जाए, आपने, मैं रिपीट कर दूंगा बार बार क्योंकि इसको गो थ्रू करना 15 मिनट का काम है, ठीक है, लेकिन इसको समझना जो है ना वो कई महीनों और दिनों का काम होगा. ठीक है, सबसे पहले मैं बार बार रिपीट करूंगा, रीजन भी कि वो आपको चीज आपके अंदर इनकलकेट हो जाए. ठीक है, हमने पहली बात की कस्टमर सेगमेंट कौन सा है आपका. ठीक है, अब हम ऑनलाइन बिजनेस एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने बात की कि भाई कि ऐसे लोग के जो टेलर्ड यानी कि कस्टमाइज सिलवाते हैं किसी लोकल दर्जी से, वो हमारे टारगेट मार्केट है, जो करीब मोस्टली हाउस वाइफ की हम बात कर लेते हैं. फिर हम आते हैं व्हाट वैल्यू आर यू गिविंग. लेट्स सपोज हम बोलते हैं कि हम आपको ऑनलाइन ही आपका जो है वो उसकी क्या नाम है साइजिंग वगैरह लेंगे और हम घर पे डिलीवर कर देंगे आपको जो भी आपकी जो आपकी कपड़े होंगे. यू डोंट नीड टू कम टू आवर दुकान या ऑफिस क्योंकि कोविड की मसले मसाइल हैं. तो हमारा जो राइडर आपके पास आएगा वो कपड़े अनस्टिच कपड़े पिक करेगा और आपके घर पे जाके ड्रॉप कर देगा. ठीक है, अब नाउ थर्ड थिंग इज चैनल. थ्रू विच चैनल्स, कौन से चैनल्स के थ्रू हम अपने कस्टमर को वैल्यू देते हैं. अच्छा, ये चैनल्स वो चैनल्स नहीं जो टीवी पे चैनल्स आते हैं. ये चैनल्स जो हैं ये मीडियम है, ये मोड्स है, ये द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद योर कस्टमर्स है कि आप कस्टमर्स को किस चैनल के थ्रू अपने सर्विसेज दे रहे हैं. अब यहाँ पर वो बात आएगी जो आपने पूछा था ऑनलाइन या फिजिकल. क्या ये सर्विसेज आप ऑनलाइन दे रहे हैं, क्या ये आप फिजिकल सर्विसेज आप थ्रू फिजिकल सेटिंग दे रहे हैं. ठीक है, कि कस्टमर को की रिक्वेस्ट के बाद, कस्टमर की सबसे पहले कस्टमर की रिक्वेस्ट आई कि उसको ये चीज चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ ही और शी इज विलिंग टू ऑर्डर ऑनलाइन फूड, वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहा है. उसके बाद एंड प्रोडक्ट उस तक पहुंचेगा कैसे, दैट इज जो बीच की चीज है ना, दैट इज द चैनल. कि पूरा एंड टू एंड उसके पास जो एंड जो प्रोडक्ट है वो कैसे पहुंचेगा उस कस्टमर के पास. ठीक है, ये चैनल की बात हो रही है. ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ये चैनल्स टीवी चैनल्स नहीं है, ये सोशल मीडिया चैनल्स नहीं है. चैनल्स का मतलब है द मीडियम, द मोड्स दैट यू आर गोइंग टू यूज टू डिलीवर वैल्यू टू योर कस्टमर्स. ठीक है, नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इसमें आप जिस तरह हमने बात, इफ यू टॉक अबाउट द ऑनलाइन सेशंस बाय सर्कल, इनका क्या मोड ऑफ वो है, चैनल्स है. दे आर गिविंग ऑनलाइन लेक्चर्स, दे आर गिविंग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स. ठीक है, उसमें हमने क्या ऐड ऑन किया कराची यूनिवर्सिटी में कि हमने फिजिकल सेटिंग भी ऐड कर दी. तो सो इट वाज अ हाइब्रिड मॉडल जिसमें जो बच्चे ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं है उनको हमने फिजिकल सेटिंग में वो लेक्चर्स दिखाए, वो उन्होंने अटेंड किए. और सर्कल वालों ने क्या किया कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया टू प्रोवाइड दीज ट्रेनिंग्स ऑनलाइन. ठीक है, सो ये ओवरऑल पूरा उनका जो है एक मॉडल रहा है कि अगर हम चैनल की बात करें तो सर्कल वुमेन हैज अ हाइब्रिड मॉडल कि जो ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ दे आर वी आर सपोर्टिंग देम टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग्स ऑन फिजिकल सेटिंग एज वेल. तो हमारी ट्रेनिंग्स का जो मॉडल था आज से पहले, दैट वाज हाइब्रिड मॉडल और हमने चैनल यूज किया ऑनलाइन एंड फिजिकल सेटिंग. लेकिन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हमारा जो चैनल है दैट इज ओनली ऑनलाइन मीडियम. आई होप मैंने इस बात को थोड़ा क्लियर कर दिया है. अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग रिगार्डिंग चैनल्स. अच्छा, चैनल्स में हर चीज आ जाएगी कि हाउ यू आर रीचिंग कस्टमर्स थ्रू ईमेल्स, थ्रू फोन कॉल्स, थ्रू फिजिकल मीटअप्स, थ्रू जूम कॉल्स. इट कैन बी एनीथिंग कि आप अपनी बात कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, दैट इज चैनल इन इजी वर्ड्स. के थ्रू विच चैनल्स
you are giving value to the customers. अच्छा, मोहम्मद नुमान ने कोई सवाल पूछा है, अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है। ऊपर जो है वो सर्कल वालों ने आपसे एक लिंक शेयर किया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर अटेंडेंस मार्क हो जाएगी आप लोगों की। जी ओके, आई होप ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने बात की कस्टमर सेगमेंट्स के, फॉर विच कस्टमर्स आर वी प्लानिंग टू गिव सर्विसेज, फिर हम क्या वैल्यू उन कस्टमर्स को दे रहे हैं और वो वैल्यू हम कैसे दे रहे हैं, थ्रू विच मीडियम वो चैनल हो जाएगा। जी, अगर हम उबर के एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम उबर की बात करें तो उबर इज गिविंग सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन ऐप के, उसका भी समझ लें कि आईसीटी तो है, लेकिन वो उसकी जो इनिशियल जो बुकिंग प्रोसेस है दैट इज ऑनलाइन, उसके बाद जो सर्विस आप ले रहे हैं दैट इज फिजिकल सेटिंग में सारी चीजें हो रही हैं फिर वो। जी, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि चैनल्स में जो है फिर वो मार्केटिंग भी आ जाती है कि आप चैनल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं कि हाउ आर यू टॉकिंग टू योर कस्टमर थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, ये भी सब इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, मरियम का सवाल है, इफ वी वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस लाइक फूड पांडा, हाउ कैन वी एक्सपेंड अ बिजनेस और गेट कस्टमर कॉन्फिडेंस। अच्छा देखिए, जो बात होती है ना कि एक बड़ी मशहूर एक 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 जो है वो कहावत है, कहते हैं कि जो जूम का एक बड़ा एक मशहूर आया था, उन्होंने कहा कि जूम ने कहा था इट टुक अस 11 years फॉर एन ओवरनाइट सक्सेस। इट टुक अस 11 years फॉर एन ओवरनाइट सक्सेस, कि 11 साल तक वो मार्केट में रहे, उन्होंने बिजनेस नहीं किया, किया मतलब लेकिन प्रॉफिट नहीं कमाया। लेकिन 11 साल के बाद जब कोविड आया, पेंडेमिक आया, सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई, तो आज Zoom इज वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना तो ये तो एक्सपीरियंस से आता है कि जब भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट आपके सर्विस को एक्सपीरियंस करेगा उसके बाद ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। कि सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर आप कस्टमर्स की बात करें, आप चैनल्स की बात करें, तो यू कैन बीइंग अ स्टार्टअप, बीइंग न्यू बिजनेस, यू कैन गिव कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज टू द कस्टमर्स, कि आप उनको बोलेंगे कि आप कुछ ऑर्डर करेंगे तो आप उनसे डिलीवरी चार्जेस ना लें। तो जो फूड पांडा सब आपको याद होगा, इस जमाने में फूड पांडा वाज गिविंग, अभी भी देते हैं आप तो कर। अच्छा, आपको पता है फूड पांडा का मॉडल क्या था? क्योंकि मैं तो खुद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक रहा है और आई बीन इन टच विद फूड पांडा सिंस 2013, तो बड़ा ही उनसे क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा है उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ और जो भी उनके सेल्स और बिजनेस मैनेजमेंट के लोग थे। तो उनका मॉडल ये था कि शुरू में दे नीड अ कस्टमर बेस। अच्छा, आप पहले तो मुझे बताएं कि जो हु आर द कस्टमर्स ऑफ, अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, उससे मुझे बड़े अच्छे ध्यान में एक एग्जांपल आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई कि, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपने मुझे बताना है कि उसके कस्टमर कौन है। लेट्स सपोज के टीवी चैनल्स हैं, टीवी, अब मैं टीवी जो जितने भी, हम टीवी हो गया, जियो हो गया, और बड़े डिफरेंट ब्रांड्स हैं, चैनल्स हैं, तो उनके कस्टमर्स कौन है? कोई मुझे बता सकता है? जो टीवी चैनल्स हैं, कोई न्यूज चैनल है, कोई डिपेंड्स ऑन चैनल नहीं, हर तमाम चैनल्स के आप मुझे एक ब्रीफ आइडिया देंगे उनके कस्टमर्स कौन है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं जियो 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 टीवी की ले लेते हैं, ठीक है, जियो न्यूज एक चैनल है, उसका कस्टमर कौन है? तो मुझे बता सकता है जियो का कस्टमर कौन है? वी, यानी कि हम जो देख रहे हैं नाउ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनीवन हु वॉचेस न्यूज और टीवी इन जनरल। अच्छा, बिल्कुल हफ्सा और फरियाल ने आपने अच्छा आपने इनपुट दिया है। आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, जनरल पब्लिक, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कंपनीज, जीशान ने कहा है कंपनीज, बहुत अच्छी बात सबने बताया, बिल्कुल। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर, कंज्यूमर एंड कस्टमर। जीशान ने थोड़ा सा सही उसमें आइडेंटिफाई की चीजें कि जो जनरल पब्लिक है, मैं और आप जो टीवी देख रहे हैं घर में बैठ के, वी आर कंज्यूमर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। जो टीवी पे चीजें आ रही हैं, हम न्यूज देख रहे हैं, हम उसकी इंफॉर्मेशन को हम कंज्यूम कर रहे हैं,
ठीक है, वी आर द कंज्यूमर्स नॉट द कस्टमर्स। कस्टमर इज द वन हु इज पेइंग फॉर दैट सर्विस। और पे कौन कर रहा है? वो जो एड्स आपके बीच में आ रहे होते हैं ना कि दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय डाल्डा फलाना निमका, जो भी कंपनीज हैं, तो वो जो कंपनीज आ रही हैं, वो कंपनीज, वो ब्रांड्स जो हैं, वो कस्टमर्स हैं। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन बिल्ड है कि हम जो है ना कंज्यूमर और कस्टमर को में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो जब आप इस क्लास के बाद जाएं तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, और कि हु इज योर कस्टमर। हु इज योर कस्टमर में ये अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर हम डायपर्स की बात करें, उसमें पैम्पर्स हैं, कैन बेबी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो डायपर्स के कौन कस्टमर्स होते हैं और कौन कंज्यूमर्स होते हैं? डायपर्स के जो कंज्यूमर्स हैं वो तो बेबीज हैं, लेकिन क्या वो खरीदते हैं? उनके एक्चुअल कस्टमर्स जो होते हैं वो मदर्स या पेरेंट्स या फादर होते हैं, क्योंकि दोज आर द वंस हु मेक द डिसीजंस टू बाय द प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंट, एक आसान अगर हम एग्जांपल दूं, आप अगर डायपर वाला एग्जांपल याद रख लेंगे तो उससे आपको याद रहेगा कि हु इज द कस्टमर एंड हु इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, और कस्टमर वो होता है जो उस प्रोडक्ट के लिए पैसा खर्च कर रहा है, जो उसके लिए फैसला ले रहा है, जो उसके लिए डिसीजन ले रहा है। So we need to identify who is the customer and who is the consumer. Okay? ऐसा भी हो सकता है कि जो कंज्यूमर है वो कस्टमर भी हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू ईट KFC, तो मैं जो है कंज्यूमर भी हूँ, मैं कस्टमर भी हूँ, मैं दोनों तरफ से ले रहा हूँ। लेकिन बहुत दफा ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने टीवी चैनल्स की एग्जांपल दी है, ऐसे डायपर्स की एग्जांपल्स दी है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें यू आर नॉट द वन टू डिसाइड अबाउट द परचेज, लेकिन कोई और कर रहा होता है, कोई और उसके लिए पेमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरह अगर हम आगे चले तो आपकी बात आई थी, कहाँ से शुरू हमने की थी? आपका सवाल था, मैं भूल गया हूँ, वापस लिख लेता हूँ। ओके, हाँ सॉरी, फूड पांडा की बात की थी मरियम ने। फूड पांडा की अगर हम बात करें तो फूड पांडा का के पास एक टाइम था कि जब दे वर बैगिंग टू द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कि भाई हमें काम दे दो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हम आपका ब्रांड अपने पेज पे लगाएंगे और हम डिलीवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप खाली हमारे पास एनरोल हो जाए, हम आपको फ्री मॉडल्स ला के देंगे। ठीक है, तो वो टाइम था, उस टाइम पे वो सारी हमारी बात सुनते थे। आज एक टाइम है कि फूड पांडा इज चार्जिंग 40% टू दी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। 40%, यानी कि बिजनेस के अगर 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो वो 400 रुपीज फूड पांडा ले जाता है, और रेस्टोरेंट ओनर के पास सिर्फ 600 रुपए बचते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए उनको टाइम लगा, दे इन्वेस्टेड हेल लॉट ऑफ मनी, एक टाइम इन्वेस्ट किया उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए। अगर हम बात करें नाहिद की, नाहिद इज ऑल्सो वन ऑफ द पाइनियर्स इन दी सुपरमार्केट्स। अब तो बहुत सारे आ गए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए। नाहिद और इम्तियाज जो है वो मार्केट लीडर्स हैं हम कराची के अंदर। एक टाइम था कि बेक पार्लर को दे वर बेगिंग टू बेक पार्लर के हमारे पास प्रोडक्ट रखवा दो, उन्होंने नहीं रखवाया। ठीक है, आज वो टाइम था कि बेक पार्लर जब वो एक नाहिद एक बड़ा ब्रांड बन गया है और उसके पास कंपनीज खुद ऑन बोर्ड आती हैं और वो सबको चार्ज कर रहा होता है एक शेल्फ स्पेस देने के लिए, और उसके बाद फिर बाद में बेक पार्लर उनके पास आया और कि हमें वापस स्पेस दो, तो उन्होंने रिजेक्ट किया, एक हैवी अमाउंट चार्ज किया अपने रखने के लिए। तो टाइम की बात होती है कि जो आपने बात की कि हाउ कैन वी बिल्ड अ ट्रस्ट विद द कस्टमर्स। ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। यू नीड टू बिल्ड द ट्रस्ट विद एक्सपीरियंस। आप सर्विस ऐसी दें, आप जो है उन कस्टमर्स को, मैं जैसे हमने इनिशियली बात की थी कि कस्टमर सर्विस के अंदर कि कस्टमर्स को इतना पैम्पर करें, आप कस्टमर को आप इतना अच्छा फील कराएं कि शायद घर में भी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती होगी। डेफिनेटली उसके अगर आपके प्रोडक्ट में 2-3 छोटे मोटे लूपहोल्स होंगे, उसको इग्नोर कर देगा और दे विल गोइंग टू ऑर्डर फ्रॉम यू अगेन। आप देखें अगर ऑनलाइन बिजनेस अगर आप देखें, मैं देख रहा था टी शर्ट्स वगैरह बहुत से लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ग्रोसरी ऑनलाइन लोग सेल कर रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, सब एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। स्टिल वी चूज पर्टिकुलर ब्रांड्स के, हम वहां जाना है, हमने क्यों जाते हैं? अगर हम बात करें कि आप जब से ये कारफोर हो गया, हाइपर स्टार, कारफोर और इम्तियाज और बिन हाशिम जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ऑन बोर्ड आ गए हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, तो अगर देखें तो ग्रोसरी तो जो आपके मोहल्ले में छोटी दुकान खुली है वो भी दे रहा है, लेकिन वाई वी गो टू डिफरेंट मॉल्स और डिफरेंट जगहों पे? क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक कंडीशनिंग एनवायरनमेंट है, वी हमें प्राइस कंपैरिजन इजीली मिल जाता है, कस्टमर सर्विस है, बच्चे वहाँ एंजॉय कर लेते हैं, तो एक वो एक एक्सपीरियंस मिल रहा है जब भी हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो
It's not only the product that is going to differentiate you, it's the experience that you are willing to give to your customers. ओके, सो मूविंग ऑन, हमने 3 बातें की हैं. पहले हमने बात की कस्टमर सेगमेंट्स की, फिर हम उनके लिए क्या वैल्यू बना रहे हैं, फिर हमने बात की कौन से चैनल्स के थ्रू बना रहे हैं. नाउ द फोर्थ पार्ट इज द चैनल्स, द कस्टमर रिलेशनशिप. कि हाउ स्ट्रॉन्ग are we linked with our customers. Now this is also very important कि जिन customers के बोलते हैं ना कि एक मिसाल ऐसी मार्केटिंग के अंदर हम मिसाल पढ़ते हैं कि you need to be very close with the customers. कस्टमर्स क्योंकि देखिए आपके बिजनेस को जो है वो मेक और ब्रेक कस्टमर के थ्रू हो सकता है. जिस दिन कस्टमर्स ने ये ठान ली कि हम आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आपका बिजनेस उस दिन से डाउन फुट चले जाएगा. ठीक है, द रीजंस कैन बी अनलिमिटेड. वो रीजन आपकी कस्टमर सर्विस भी हो सकती है, वो आपकी प्रोडक्ट में लैक ऑफ इनोवेशन हो सकता है. हमने नोकिया की एग्जांपल देखी. नोकिया वाज द पायनियर इन द मोबाइल इंडस्ट्री, लेकिन किस तरह कस्टमर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया विद टाइम. कस्टमर, उन्होंने कोई बुरी कस्टमर सर्विस नहीं दी, लेकिन उन्होंने, उनके पास लैक ऑफ इनोवेशन था. वो आगे इनोवेट नहीं किया, वो उन्होंने चेंज नहीं किया अपना मार्केट के साथ. ब्लैकबेरी इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल जिसको कस्टमर ने चेक कर लिया. उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू बी वेरी क्लोज विद द कस्टमर्स. अच्छा, कस्टमर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक आपके होते हैं इंटरनल कस्टमर्स, एक होते हैं आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स. कौन मुझे बताएगा कि क्या डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स में? इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स. Any idea what is the difference between an internal and external customer? Okay. So the major difference between the internal and external customer is जो internal customer होते हैं वो आपके employees होते हैं. वो आपके विद इन द कंपनी जो आपके लोग हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे आपके इंटरनल कस्टमर्स हैं. क्योंकि दीज आर द वंस जो मार्केट में जाकर एडवोकेट करेंगे. लेट्स सपोज कि अगर मैं किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि आई एम वर्किंग एट नेस्ले और हम नेस्ले के जूसेस बनाते हैं. ठीक है, मैं उस डिवीजन में हूँ. और अगर मैं देखता हूँ वहां पर कि वहां पर वो नेस्ले के में मैंगो पल्प लिख रहे हैं कि वो यूज कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट यूजिंग मैंगो एट ऑल. मैं क्या बोलूंगा? मैं जाके बुरी बातें करूंगा ना, बाहर जाके अपने घर वालों को बताऊंगा, फिर घर वाले अपने वो बच्चे अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, फिर वो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि भाई कि वो मेरे जो फ्रेंड के जो फादर हैं वो इज वर्किंग एट नेस्ले और दे आर नॉट यूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स, राइट इंग्रेडिएंट्स. तो वो एक नेगेटिव आपको वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा. इससे कॉन्ट्रास्ट के अंदर अगर हमारी प्रैक्टिसेस सही हैं, if Nestle is using the right product, the right ingredients, तो मैं वही अच्छी बात बताऊंगा कि भाई ये नेस्ले प्रोडक्ट यूज करो क्योंकि दे आर यूजिंग द राइट पल्प और वो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे होते हैं. तो मैं उनका पहला कस्टमर हूँ बिफोर द एंड यूजर, जो कि उनके कंज्यूमर कस्टमर्स, जो उनके एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं. पहला जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है और उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज द एम्प्लॉइज ऑफ दैट कंपनी. तो एम्प्लॉइज आपके होते हैं इंटरनल, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, दे अरेंज अ लॉट ऑफ टीम वर्क बिल्डिंग एक्टिविटीज, दे अरेंज इंडस्ट्री विजिट्स के अपने वो पूरे फैक्ट्री विजिट कराते हैं ताकि एक अच्छा इंप्रेशन और बिल्ड हो कि हाउ गुड दीज कंपनीज आर. ऑन द अदर हैंड हमारे पास फिर हैं एक्सटर्नल कस्टमर्स, जो बाहर वाले कस्टमर्स हैं. वो कौन होते हैं? एक्सटर्नल कस्टमर्स जो होते हैं वो आपके एंड कंज्यूमर्स या एंड यूजर्स हैं, जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. सो हाउ टू मेक रिलेशनशिप्स विद द कस्टमर्स, इसके बारे में कोई बताएगा? अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है ऑलरेडी, तो उसकी एग्जांपल दे कि कैसे वो अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, कैसे वो एंगेजमेंट करते हैं, कैसे कंप्लेन हैंडलिंग होती है, कैसे जो है अगर प्रोडक्ट कोई अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाया, कोई सर्विस डिले आ रहा है, तो हाउ आर यू गोइंग टू कैटर इट. कोई एग्जांपल शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम.
ओके, कोई एग्जांपल शेयर करना चाहेगा रिगार्डिंग कस्टमर सर्विस? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कस्टमर हम पाकिस्तान में कस्टमर रिलेशनशिप्स पे सबसे कम फोकस किया जाता है कि हमारा फोकस होता है प्रोडक्ट पे, कि बस प्रोडक्ट अच्छी अच्छी इनोवेटिव बना लो और उसको बेचो मार्केट में, ये हमारा फोकस होता है। हाउ टू हैंडल रूड कस्टमर्स इन अ रेस्टोरेंट, बड़ा अच्छा इन्होंने ने एक सवाल पूछा है, और हमने पर्सनली बड़ा ये चीज़ फेस की है और हम सुनते भी हैं कि हमने पढ़ा है कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज किंग। ऐसे अगर आपको आप हमने जो है मार्केटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये वाले, लेकिन मसला ये होता है कि कस्टमर इज ऑलवेज नॉट राइट, कि माइट बी पॉसिबल वो एक रूड कस्टमर है और रूड वो तरीके से वो चीज़ों को हैंडल कर रहा है, और वो एक बिल्कुल ही छोटी बात को वो बिल्कुल एक बड़ी एग्जैजरेट करके बड़ा बना के पेश करके वो मिलाइन करने की कोशिश कर रहा हो, आपके ब्रांड को खराब करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपने पूछा है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन तमाम चीज़ों के लिए पहले से हम पॉलिसी बनाते हैं, रादर के वो कस्टमर जब हमारे सर पे खड़ा हो हम उसको हैंडल करें, कैसे हैंडल करें, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है। और उसमें नॉर्मली हम जो है कोई ना कोई, या तो हम खुद रूड हो जाते हैं और हम भी बदतमीजी करनी शुरू कर देते हैं, या तो वो कस्टमर हमारे ब्रांड को इतना वो मिलान करता है कि वो चीज़ ही फिर वो खराब हो जाती है वो। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको पहले वर्कआउट करना है। यू नीड टू वर्क ऑन कस्टमर रिलेशनशिप्स, कि कैसे आप कस्टमर से डील करेंगे। वो पहले से स्क्रिप्ट बनी होनी चाहिए, पहले से वो पॉलिसीज बनी होनी चाहिए फॉर योर ब्रांड, फॉर योर बिजनेस, के आप कैसे हैंडल करेंगे। तो अगर रेस्टोरेंट में अगर ऐसी कोई चीज़ आती है, तो फॉर टाइम बिंग आप क्या करते हैं कि एट टाइम्स आप मजबूर होते हैं कि क्योंकि कस्टमर बहुत शोर मचा रहा होता है कि ही इज येलिंग एट यू, ही इज मेकिंग अ फस ऑफ अबाउट इट, तो आप क्या करते हैं उसको चुप कराने के लिए फॉर टाइम बीइंग आपने तो उस चीज को रिप्लेस कर, जो भी वो काम बोल रहे हैं आपने उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि अगर आप सही भी हैं और उससे डिबेट में जाएंगे, 10 लोग आपके रेस्टोरेंट में बैठे हैं वो देख रहे होंगे, दे डोंट नो द रियलिटी, वो ये देखेंगे यार इनके कुछ गड़बड़ है बहुत ही, कोई मतलब कि कोई जेन्युइन केस है वो खराब हो जाएगा। तो एट पीरियड ऑफ टाइम आप कस्टमर को जो है ना वो रिलैक्स कराते हैं और उसको जो है वो उसमें उसकी हाँ में हाँ मिला के लोगों को जो है ना उसको एक पहले कूल डाउन कराते हैं उसको। इस बात आप अपनी जो डिबेट जो होती है ना, आप उसको कोशिश करते हैं कि इस पे रखें कि एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड अपार्ट फ्रॉम द मिसबिहेविंग पार्ट। आप उनको उस तरह बात कर सकते हैं कि आपकी जो अब इशू होगा हम उसका 100% रिवर्स करने को तैयार है, हम जो है उसको रिप्लेस करने को तैयार हैं, लेकिन जो ये आपकी जो रूड बिहेवियर है, आपको जो मिसबिहेविंग एटीट्यूड है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर रेस्टोरेंट। तो आप उसको उसी पे उसको आप मना करके आप बड़े एक अच्छे काम तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। इस पूरे पर्पस के लिए आपके पास रेस्टोरेंट मैनेजर्स होते हैं, वो बड़े इनकेस होते हैं, क्योंकि जो वेटर होगा या कैशियर या शेफ जो बैठा हुआ है वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। अगर वो हैंडल करेगा तो इवेंचुअली वो अपना काम छोड़ के आ रहा होगा। जो इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर गेस्ट रिसीविंग ऑफिसर के नाम से ही बोलते हैं, जीआरओ के नाम से। एक और एक पोजीशन है जीआरओ। होटल मैनेजमेंट के जो लोग हैं इस बात को बिल्कुल इसको इससे समझते होंगे। आपने देखा होगा कि जब आप इस रेस्टोरेंट में आते हैं तो बिल्कुल ही एंट्रेंस में बंदा खड़ा होता है, वो फिर आपको आपकी टेबल तक लेके जाता है और ड्रॉप करता है, वापस वो वहां पर आ जाता है, एंट्रेंस पे आ जाता है। उसको उस बंदे की जो पोजीशन है उसको बोलते हैं जीआरओ, गेस्ट रिसीविंग ऑफिसर। तो वो भी ये हैंडल करते हैं कि वो उनको कस्टमर को थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, सर थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पिए, हमारी गलती है, हमसे गलती हो गया, बैठे हैं थोड़ी बात करते हैं, या चाय लेकर आया कस्टमर के लिए लेकर आ गया, तो वो उस तरह हैंडल करते हैं। तो वो द बेस्ट idea, the best strategy to is to handle this kind of customer is to distract them, उनको distract करें कि जितने बुरा बंदा हो अगर आप उसको कुछ चीज फ्री ऑफर करेंगे तो इवेंचुअली वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे डेफिनेटली। जी मुनीबा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आपका आपने हैंड रेज किया है इसके अंदर, तो बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। आई होप अनम मैंने आपका सवाल का आंसर दे दिया है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कस्टमर रिलेशनशिप की। तो कस्टमर रिलेशनशिप के लिए इट इज ये केस टू केस डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इट इज टोटली डिफरेंट। कस्टमर के लिए देखिए सबसे बड़ा चीज पता है क्या होता है, हमें ये लगता है कि हमने कस्टमर से ऑर्डर ले लिया, अब हम उससे उस वक्त की बात करेंगे जब उसको कोई चीज मिल रही होगी, ठीक है। तो कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर आपने देखिए इन ऑनलाइन सेटिंग, इन वर्चुअल सेटिंग, he or she does not know how much struggle you are doing in your business, ठीक है, उसको नजर नहीं आ रहा है। जैसे रेस्टोरेंट की अगर बात करें या फिजिकल सेटिंग बात करें तो हमें नजर आ रहा है कि बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है वो मेरा। अच्छा लेट्स सपोज हम जो है वहां बैठे हुए किसी रेस्टोरेंट बैठे हुए, हम देख रहे हैं अपना ऑर्डर प्रिपेयर होते हुए कि हम लाइव नजर आ रहा है हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है,
तो हमें ऑटोमेटिकली एक ना सेल्फ और सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हाँ यार थोड़ा डिले हो गया लेकिन मेरा प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन इन वर्चुअल सेटिंग्स, इन ऑनलाइन ऑर्डरिंग, आपको नहीं पता हो रहा क्या हो रहा है उसकी बैकएंड में। उसकी बाइक पंक्चर हो गई राइडर की, या आपके रेस्टोरेंट में सा आग लग गई है, क्या हो, कुछ नहीं पता उसको, बस उसको ये पता है मेरा ऑर्डर कहाँ कहाँ रह गया है। तो यू नीड टू टॉक टू योर कस्टमर्स इन केस ऑफ डिले। ओके, मैं आपके मिस मुनीबा, मैं आपके सवाल पे बिल्कुल आता हूँ। मैं पहले मैं अपनी वाली बात कंप्लीट करता हूँ। तो सो यू नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर। उसमें आपको बार बार उससे इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। हम रिलेशनशिप किसी से कैसे बिल्ड करते हैं? हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ गेट टुगेदर करते हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हम सिर्फ काम के वक्त बात नहीं करते। अच्छा, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी यह है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स, और आप उनकी प्रोफाइलिंग के हिसाब से उनसे एक एक ऑफ द टॉपिक बात करें। सर बड़ा मतलब कोविड की बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, आप सब खैरियत से हैं, उनकी खैरियत पूछें, उनके बारे में जानें। सिमिलरली कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर फिर आफ्टर सेल सर्विस भी आती है कि आपने एक तो जब उसने ऑर्डर किया उसका का एक्सपीरियंस, फिर ऑर्डर से डिलीवरी जो वो उसकी हो रही है, जब तक वो एक फाइनल प्रोडक्ट उसको मिल जाए उसके दरमियान की इंटरेक्शन, फिर जब उसको चीजें मिल गई है उस वक्त की इंटरेक्शन, फिर जब उसने वो चीज यूज कर ली है उसके बाद की इंटरेक्शन। तो यानी देयर आर अ लॉट ऑफ फेजेस ऑफ इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। तो ये पूरा बंच मिलके बनता है द रिलेशनशिप विद कस्टमर। मुनीबा ने पूछा है, सर पेज रिपोर्ट कर देते हैं कुछ कस्टमर्स और काफी पेजेस पर उनकी पेज की बुराई करती है, जबकि ऐसा नहीं होता, तो उसे कैसे हैंडल करें? अच्छा देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि व्हेन यू हैव अ वेरी गुड ब्रांड इमेज, इसके लिए जरूरी है कि आपने अपनी एक अच्छे कस्टमर्स की आर्मी तैयार करनी है। इसका एक ही हल है। अगर मैं बोलूं कि मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप बोलेंगे अच्छा ये इस प्रोडक्ट का ओनर है, जाहिर है अपने प्रोडक्ट तारीफ ही करेगा ये। लेकिन अगर आप में से कोई इस पेन की तारीफ करते हैं तो आपके फ्रेंड्स बड़े इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आप लोगों का इससे कोई लिंक नहीं है। सिमिलरली, इफ द कस्टमर्स आर गिविंग गुड फीडबैक अबाउट माय प्रोडक्ट, तो अगर कोई बुरा फीडबैक भी आ जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है बिल्कुल, बिजनेस में बिजनेस राइवलरी होती है और लोग इस लेवल तक चले आते हैं कि किसी बिजनेस को खत्म करने के लिए, किसी बिजनेस को मिलाइन करने के लिए वो एक उसको वो फेक जो है ना वो फीडबैक दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास इफ यू हैव 100 गुड रिव्यूज और आपके पास 10 बुरे रिव्यूज आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है, लोगों को पता है कि यार कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेजेस ऑन डिफरेंट ग्रुप्स कि जब वहां पे कोई उसकी बुराई करे तो काफी लोगों को डिफेंड करने आया था। रीजन बीइंग कि कस्टमर्स को पता है कि यार ये ऐसा हो नहीं सकता। लेट्स सपोज कि कोई आपको, मैं आपको जस्ट जस्ट आउट ऑफ ब्लू मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बीइंग अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, अगर आपको कोई मतलब कि हम सबको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, और अगर आपको कोई बंदा के बोले कि यार तुमको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की डिग्रीज जो होती हैं जाली होती हैं, कोई यकीन करेगा इस बात को? नहीं करेगा। सबको पता है कि भाई हमारे किसी न किसी जानने वाले ने वहां से पढ़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बीइंग दी गवर्नमेंट एंड दी लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंडरस्टूड सी बात है। तो आपने अपना ब्रांड ऐसा क्रिएट करना है कि अगर कोई बुराई भी करा उसको कोई यकीन ना करे। नहीं, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पर होंगे। आप बुराई को भी खत्म नहीं कर सकते। बुराई खत्म होती तो फिर क्या ही बात होती, तो हम तो फिर फरिश्तों की दुनिया में आ जाएंगे। तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। एंड मिनिमाइज ऐसे ही कर सकते हैं कि आपके जो ब्रांड के, आपके बिजनेस के जो एडवोकेट्स हैं वो मार्केट में बैठे हुए कि उसकी तारीफ करने के लिए या उसको जानने के लिए, गिविंग द फैक्ट कि दो बुरे रिव्यूज आए तो फर्क नहीं पड़ेगा। इफ आई एम यूजिंग if I'm eating food from a restaurant like from past 1 year, कोई बुराई करते मैं यकीन नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मैंने इनके पास 50 दफा तो खाना खाया हुआ है, मैं कैसे यकीन करूंगा उसकी बुराई जो मैंने खुद फील नहीं किया। तो ये नए कस्टमर्स के लिए चीज फीलिंग आती है, लेकिन if नए कस्टमर जब पूरे रिव्यूज देखेंगे तो ऐसा कोई नहीं होता सिर्फ बुरे रिव्यूज देख के फैसला कर लेते हैं कि हाँ यार ये चीज खराब है, उसको क्लोज डाउन करो। तो इसमें आपका जो गुड इमेज है उस पर आपने बहुत ध्यान करनी है। डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव पार्ट, focus on the positive part of your email. I hope I have answered your question, Muniba. Okay, so हमने बात की कस्टमर सेगमेंट्स की, फिर हमने बात की कि उन कस्टमर्स को कैसे क्या वैल्यू देनी है, हमने फिर बात की कि किन चैनल्स के थ्रू उनको वैल्यू देनी है, फिर हमने बात की कि उन कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। ओके, फिर हम अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, दैट इज द रेवेन्यू स्ट्रीम। सब बिल्कुल नीचे आता है रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब आए हैं हम पैसे कमाने पे, जिसकी हम बात शुरू में पहले ही करना शुरू कर देते हैं।
What are we charging to customers? ठीक है, how much they are willing to pay, देगा मतलब कस्टमर्स। ठीक है, और बहुत सारे सवाल है, मैं आपको बाद में दे दूंगा कि क्या क्या चीजें बना सकती हैं। आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मोड ऑफ पेमेंट। These are the main points। में 10-12 और पॉइंट्स हैं। एट द एंड ऑफ सेशन आपका पूरा ये फील्ड डॉक्यूमेंट आप लोगों को दे दूंगा मैं, ताकि आप लोग रेफरेंस के लिए इसको देखते रहें और अपने बिजनेस प्लान उसके हिसाब से बना लें। रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बारे में अगर बात करें तो रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जो इनकम आपके पास आ रही है। अभी हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू का मतलब ये है कि इफ आई एम सेलिंग दिस पेन फॉर 10 रुपीज, तो कॉस्ट मेरी की आधी इसको छोड़ दें अभी, लेकिन 10 रुपए मेरे हाथ में आ रहे हैं, तो व्हाट वैल्यू आर यू गोइंग टू गिव इन एक्सचेंज ऑफ द मनी, या जो भी उसको आप चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपका कस्टमर सेगमेंटेशन देख लिया, आपने देखा कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं उसको, उस वैल्यू के हिसाब से आपने ये देखना है कस्टमर के लिए वो वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए कितना अमाउंट देने को वो तैयार है। अब हम फिर से बात करते हैं उबर की। अगर हम उबर की एग्जांपल लें, और अब मैं उबर की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ क्योंकि करीम को उबर ने एक्वायर कर लिया है, तो हम उबर की बात कर रहे हैं। उबर करीम दोनों उसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें तो एक टाइम ऐसा था कि उबर करीम वाज वेरी चीप, बहुत सस्ते में हम जो है यहाँ से लेके पूरा ऑल द वे पूरा कराची ट्रेवल कर लेते हैं। लेकिन अब आपको विद इन एक ही, अगर आपको विसिनिटी में ट्रेवल करना हो तो 300 रुपये बन जाते हैं आपके मिनिमम, विद इन 3-4-5 किलोमीटर। बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। ठीक है, उसमें हुआ क्या, इनिशियली उसने क्या किया, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखी, बड़ी सस्ती रखी। वो उसका एक अवेयरनेस मॉडल था कि लोगों को उसने अपने ब्रांड का, अपनी सर्विस का, उसको उसने अपना आदी बनाया, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो यूज प्रोडक्ट करें इजीली। वंस वो यूज करने लगे, वंस वो उसमें काम करने लगे, जब उसमें सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद ग्रेजुअली उन्होंने उसमें पैसे बढ़ाने शुरू किए। तो जब उन्होंने देखा यार कि ये जो मैं उबर ने इसको पूरा एनालाइज किया कि जो मैं जो वैल्यू उसको दे रहा हूँ, ये वैल्यू उसको दुनिया में कहीं नहीं मिल रही, मतलब कराची में कहीं नहीं मिल रही। ठीक है, कराची में अगर हम बात करें, अदर सिटीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कराची स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि अदर सिटीज में भी वी हैव मेट्रोज एंड डिफरेंट चीजें आ रही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कराची की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं तो वी हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो जो बसेस मौजूद हैं, उनका हाल आप लोगों ने देख लिया है, फिर रिक्शाज हैं, फिर टैक्सीज हैं, उसके अलावा चिंगचीज हैं, ये हमारे पास ऑप्शन से पहले। ठीक है, और कस्टमर सर्विस का तो अल्लाह ही हाफिज है कि किस तरह के वो लोग हैंडल करते हैं कस्टमर्स को, किस तरह फीमेल से इंटरेक्ट करते थे ये ड्राइवर्स जो हैं, तो बहुत ही बुरा हाल था। तो लेकिन जब उबर आया और करीम आया, उन्होंने इस नीड को आइडेंटिफाई किया और उसको उन्होंने हैंडल करना शुरू किया। नाउ जब उनको ये इस बात का यकीन हो गया कि जो मैं सर्विस दे रहा हूँ वो सर्विस इन सबसे बहुत बेहतर है, यानी कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द सर्विस दैट उबर इज गिविंग एज कंपेयर टू दी अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक बड़ा गैप है। तो फिर उसने बोला है कि अब मैं पैसे बढ़ाने को तैयार हूँ, क्योंकि अब लोग मेरे प्रोडक्ट के आदी भी हो गए हैं, मेरी सर्विसेज के आदी भी हो गए हैं, और अब दे मस्ट बी विलिंग टू गिव मी एक्स्ट्रा मनी। और ऐसा है, जब मेरी गाड़ी खराब हो जाती है कभी, तो मैं उबर यूज करता हूँ, मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि आई एम वेरी कंफर्टेबल इन यूजिंग। मैंने ऑफिस में बैठ के उबर मंगवाई, मेरे बिल्कुल वो पिन लोकेशन पे जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पर ही आके मुझे पिक करता है, और कोई नेगोशिएशन नहीं होती कि पैसे कम कर लो, बढ़ा दो, या एक गली आगे जाना हो तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। दे जस्ट चार्ज द अमाउंट व्हिच इज रिटन ऑन दी ऐप। कोई भैंसबाजी नहीं, ऑलरेडी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ अपने काम के साथ, मैं काम करके आया हूँ, थक कर आया हूँ, मैं उससे बहस भी करूँ ये वाली कि पैसे बढ़ा दो, कम कर दो। तो उसने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है और अब वो उसके लिए ज्यादा पेमेंट मांग रहा है। नाउ इसमें एक और बात आती है कि मोड ऑफ पेमेंट। हम बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा कि अब ऑनलाइन जो पेमेंट है वो काफी बिजनेस ने ऑप्ट कर लिया है, क्योंकि फिजिकल कैश देना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनकी सैलरीज जो है वो अकाउंट में आती हैं, दे आर कंफर्टेबल इन गिविंग द मनी थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स, या ऑनलाइन पे करना चाहते हैं, क्योंकि कैश कैरी करना इज वेरी डिफिकल्ट, कैश कैरी कोई भी नहीं करता है। तो अब जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रेफर टू हैव क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स या ऑनलाइन पेमेंट, ताकि उसके थ्रू पेमेंट मिल सके। तो मोड ऑफ पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल।
या मैं तो अक्सर देखता हूँ कि अगर कोई मुझे बोलेगा कि अच्छा इसमें एट टाइम्स मोड ऑफ पेमेंट में कुछ चीजें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी आता है कि अगर मुझे किसी ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं है तो आई वुड गो फॉर मोड फॉर कैश ऑन डिलीवरी सर्विस, क्योंकि आई डोंट नो द ब्रांड के वो मुझे डिलीवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेरी अपनी कन्वीनियंस को मैंने नीचे कर दिया और ट्रस्ट को ऊपर करने के लिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। सो if you are doing online business, so these are the services that you are going to give if you talk about revenue stream। अच्छा, revenue stream की अगर हम बात करते हैं तो revenue streams किसी एक business में multiple हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि revenue stream सिर्फ single ही हो। Let's suppose if you have a business, उसमें आप might be possible आपका कोई ऐसा brand है जो आप online की sell कर रहे हैं लेकिन आप ads के थ्रू भी कमा रहे हैं। ठीक है, आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि आपको एड्स की ऑफर आ रही है तो आप एड्स के थ्रू भी कमा सकते हैं। तो आपने रेवेन्यू स्ट्रीम में आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द रेवेन्यू स्ट्रीम्स यू आर गोइंग टू फोकस इन योर बिजनेस। अगर हम बात करें कि वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रांड्स लाइक फेसबुक की बात करें, कौन बताएगा कि व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल ऑफ फेसबुक, व्हाट आर द रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉर फेसबुक? एनीवन? What is the revenue model for WhatsApp? What is the revenue model for Instagram? What is the revenue model for Skype? जितनी भी ऐसे आप फ्री आप जो है प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो उसके रेवेन्यू मॉडल क्या हो सकता है, कैसे पैसे कमा रहे हैं वो लोग? डू यू थिंक कि वो एक एनजीओ है या वो कोई फ्लाई आ रहा है कि वो पैसे कमाना नहीं चाह रहे, या उनके कोई डिफरेंट मोड्स ऑफ अर्निंग मनी है? सो इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके एग्जैक्टली स्पॉन्सर्स, आपने कहा है मोहम्मद नुमान ने कि उसमें एड्स का ऑप्शन होता है कि आप एड्स प्लेस करते हैं तो उसके थ्रू पैसे कमाते हैं। तो एक टाइम था कि उस एड्स के भी पैसे नहीं कमा रहे थे, उन्होंने अपना ब्रांड को बिल्ड किया, वो कस्टमर बेस बिल्ड किया, उसके बाद जाके उन्होंने तमाम चीजें शुरू की है। नाउ अब वो टाइम आ गया है कि अगर आप देखें कि अगर फेसबुक की बात करें, इफ यू हैव फेसबुक पेज, जो अगर आप बिजनेस पेज चला रहे हैं कोई, तो आपकी रीच बहुत मिनिमल होती है, ऑर्गेनिक रीच। आप शेयर पे शेयर किए जा रहे हैं, उस पर हार्डली जो है ना 30-40 व्यूज आ रहे होंगे। बट इफ यू मेक इट ऑन, अगर बूस्ट करते हैं तो बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं। तो उन्होंने अपना एल्गोरिथम ऐसा बना लिया है कि यू हैव टू यूज दी पेमेंट मॉडल्स, उसके बाद ही आपके पास कस्टमर्स आना शुरू होंगे। So this is a revenue stream that they are looking right now. So you need to identify what is the revenue model for your business. अगर हम रेस्टोरेंट से बात करेंगे, उनका तो बड़ा ट्रेडिशनल रेवेन्यू मॉडल है कि वो कस्टमर्स से कमाते हैं। ऑल्सो अगर आपके पास बड़ी कोई जगह है ट्रेनिंग और सॉरी अगर बड़ी कोई स्पेस है जहाँ पर आपके पास एक लोगों को बैठने की, तो यू कैन गिव योर हॉल ऑन रेंट, या कोई ट्रेनिंग कराने के लिए अपना आप रेंटल चार्ज करें, मल्टीमीडिया अपना लगा दिया है और आप उनको लोगों को चार्ज करें कि फॉर रूम, या उसमें आप कॉफी के लिए चार्ज कर लें। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ रेवेन्यू मॉडल फॉर रेस्टोरेंट्स। तो अगर और कोई मुझसे पूछना चाहे कि किसी बिजनेस का रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे बेहतर हो सकता है और कैसे उसका हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं उसको भी आंसर कर सकता हूँ। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग ऑलरेडी कोई ऑनलाइन बिजनेस पेजेस चल रहे हैं या आपके जानने वाले चल रहे हैं तो उन बिजनेस के बारे में पूछें ताकि हम उसके बारे में बात कर सकें। वी जनरली बात करने से यू वोंट एंड अप एनीवेयर आप जब तक आप उसको पर्सनल लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे। So far we have discussed 5 streams, almost हमने 50% कवर कर ली है, जिसमें हमने बात की कस्टमर सेगमेंट्स पे, कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया हमने, उसके बाद हमने उनके लिए वैल्यू प्रपोज की कि हम उनको वैल्यू क्या देने वाले हैं, उसके बाद वी डिसाइड द राइट चैनल्स कि हम किस तरह उनको वो वैल्यू प्रपोज करेंगे, व्हाट आर द राइट चैनल्स। उसके बाद फिर हमने कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में बात की कि हमने थ्रू आउट द कस्टमर जर्नी है उसमें हमने कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है मेरे कस्टमर्स। फिर हमने उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट्स, ऑनलाइन बिजनेस एंड उबर। फिफ्थ हमने डिस्कस किया है रेवेन्यू स्ट्रीम्स कि हमने क्या रेवेन्यूज जनरेट करने हैं, किस हमारे क्या रेवेन्यूज हो सकते हैं। We can have more than 2 revenue streams as well, more than 1 revenue stream as well for our businesses. Okay, so far so good. I'm getting a very good response from you guys. I'm amazed to कि आप ऑनलाइन सेशन को भी इतना इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अपना फीडबैक दे रहे हैं। ओके, सो
कोई सवाल अगर हो तो आप लोग पूछ लें, क्योंकि हमने ये वाला काफ़ी पार्ट हमने शेयर कर लिया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आएंगे की रिसोर्सेज पे आएंगे। किसी का कोई सवाल है अभी तक इस पूरी जर्नी के अंदर? कोई सवाल है? क्योंकि ये तमाम चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। इट्स लाइक ए ट्रेन के चेन का एक डब्बा दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो तमाम से कनेक्टेड है। अगर एक भी अगर आपका वो चीज़ मिसिंग हुआ तो पूरा बिजनेस मॉडल आपको कोलैप्स कर जाएगा। तो एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई एग्जांपल? आई एम हियर टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज। Okay, so moving on, now coming to key resources. Key resources. अच्छा, हम इस बात करेंगे कि इसमें हम बात कर सकते हैं आपकी व्हाट आर दी, इसमें यूएसपी आ सकता है। इसमें यूएसपी मतलब होता है, इसको नहीं पता, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी हो सकता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट भी हो सकता है, तो आप कुछ ही बोल सकते हैं। यूएसपी आ जाएगी। और योर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आपकी क्या है, ठीक है। और 10 मिनट्स में हम फिर बफर से बात करते हैं। ओके, जब की रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, की रिसोर्सेज का मतलब है, अच्छा जीशान कैसर का सवाल है, सर अगर हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा? यूट्यूब चैनल की अगर बात करें तो आपके पास मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप देखें, वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन पाकिस्तान एज वेल। अगर आप देखेंगे, वी हैव जुनेद अकरम का कंटेंट है, फिर वी हैव इरफान जुनेजो मूरो के नाम से एक और है। तो और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, दे आर अर्निंग थ्रू यूट्यूब चैनल। एक तो तरीका ये होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक रीच बनती है, उसके बाद आपको यूट्यूब पे पैसे देता है। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन। और उसका वहां आपकी वीडियो का के जो कस्टमर्स हैं, हम बात की, जो आपके जो एंड यूजर्स हैं, एंड यूजर्स अगर आपके की उनकी क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, या वो एक अच्छा क्राउड है, तो फॉर दैट somebody कैन स्पॉन्सर यू। अगर हम बात करते हैं कि लेट्स से कि अगर आपका कंटेंट के अंदर जो यूथ है वो बहुत इंगेजिंग है, आप यूथ को एडजस्ट करते हैं, उनके मसले मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, आप करियर एडवाइस लेते हैं, और आपके हर वीडियो पे मोर देन 1 लाख व्यूज आ जाता है, 100,000 व्यूज आते हैं। तो आई एम श्योर कि देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज के जो आर विलिंग टू गिव यू सम मनी, और इन एक्सचेंज वो आप चाहेंगे कि उसके ब्रांड को स्पॉन्सर करें, उसका नाम कहीं ना कहीं आ रहा हो, उसको आप उसके बारे में बात करें। इसी तरह कोई जो एंटरटेनिंग वीडियोस होती हैं, इडियट्स के नाम से है, कराची वाइन्स है, बेकार वाइन्स है, वो भी इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। दे आर अर्निंग गुड मनी थ्रू, आप अक्सर देखा होगा लाल किला को उनको स्पॉन्सर कर रहा होता है, कभी उनको कोई सेलफोन कंपनी उनको स्पॉन्सर कर रही होती है। तो लेकिन जरूरी ये है कि पहले आपने सोचना है कि आपका जो कंटेंट वो इतना स्ट्रांग हो और लोग उसको देखने वाले वहां मौजूद हों, ठीक है। अगर आपके पास मोर देन 50,000 व्यूज पर वीडियो हैं, तो आपको डेफिनेटली कोई नहीं कोई मिल जाएगा, और मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा, और मैं ही आपको दिलवा दूंगा कोई ना कोई ऐसा बंदा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन निशान। ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, की रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, तो वी हैव बिल्कुल, मैं आपके उसामा का सवाल है, सर हम इंस्टाग्राम पे बिजनेस की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? उसामा, मैं आपको की रिसोर्सेज के बारे में बताता हूँ, उसकी बात करके हम आपके सवाल पे वापस आते हैं। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट की रिसोर्सेज, हमने देखते हैं कि हमारी अपने बिजनेस की हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। अगर हम लेट्स सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ कोकोला, पेप्सी। अगर हम पेप्सी कोकोला की बात करें, तो व्हाट डू यू थिंक कि उनकी की रिसोर्सेज क्या हैं उनके? हम मिलियनर्स की बात करें, व्हाट इज देयर की रिसोर्सेज, व्हाट आर देयर की रिसोर्सेज? की रिसोर्सेज का मतलब है कि एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसकी बेसिस पे आप आगे बढ़ रहे हैं।
या उसकी बेसिस पे बिजनेस आगे बढ़ सकता है। डू यू नो पेप्सी और कोकोला, इनका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, दैट इज नॉट देयर टेस्ट टू ग्लोबल प्रेजेंस। लेकिन ग्लोबल प्रेजेंस के लिए भी होने के लिए बहुत जरूरी, इनडायरेक्टली यू आर राइट, बट देयर इज आल्सो अ राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन कि पेप्सी और कोकोला के पास क्या ऐसी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। उनका डू यू थिंक उनका टेस्ट इतना जबरदस्त है कि लोग पिए जा रहे हो? डू यू थिंक कि उनके पास कोई ऐसी हेल्दी इंग्रेडिएंट है कि जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं? कौन अगर इस पे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपने देखा होगा कि वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड इज कोकोला। कैसे वो अब अपने आप को इतना ब्रांड बना के सेल आउट कर रहा है? क्या उसके पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है? द आंसर इज एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल है उनकी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो एक उसका टूल है मार्केट करने के लिए। उनकी यूनिक सेलिंग पॉइंट इज देयर सप्लाई चेन, देयर नेटवर्क। आपको अगर आप इंटीरियर साइड चले जाएंगे तो आपको पानी शायद वहां नहीं मिलेगा, लेकिन कोका कोला का फ्रिज और उसकी जो प्रोडक्ट वहां मिलेगी हर दुकान पे, हर जगह पे। चाहे वो कोई मॉल हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई रिटेल आउटलेट हो, आपको पानी नहीं मिलेगा शायद वहां पर, लेकिन कोका कोला पेप्सी वहां मिलेगी आपको। उनका सप्लाई चेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसकी यूएसपी है सप्लाई चेन नेटवर्क, कि किस तरह वो सप्लाई चेन को आगे लेके जा रहे हैं, कि किस तरह वो अपने प्रोडक्ट को हर जगह अवेलेबल करवा रहे हैं। दैट इज देयर सेलिंग पॉइंट। उनकी स्ट्रेंथ जो है दैट इज सप्लाई चेन। अगर हम मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं तो मैकडॉनल्ड्स की जो सेलिंग पॉइंट है, उसकी जो यूएसपी है, इज देयर वैल्यू मील्स, इज देयर फास्ट फूड। जो फास्ट फूड का जो कॉन्सेप्ट लाने वाले ही मैकडॉनल्ड्स हैं। कि आप अगर आप उनका जो ड्राइव थ्रू वाला प्रोसेस है, आपने गाड़ी लेके एक जगह ऑर्डर किया, आप घूम के दूसरी विंडो पे जाएंगे, आपको ऑर्डर तैयार मिलेगा। दैट इज देयर सेलिंग पॉइंट। फास्ट फूड का मतलब ही ये है कि मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ऑर्डर किया, वहां से मिला, मैंने खाया, रास्ते में खाते हुए मैं चला गया हूँ। दिस इज व्हाट दे आर सेलिंग। वो आपको मैकडॉनल्ड्स से टेस्टी बर्गर्स बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन उनके जो वैल्यू मील्स हैं, उनके जो जो उनका फास्ट सर्विस है, वो जो लाने वाले हैं, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज देयर सेलिंग पॉइंट, दैट इज देयर स्ट्रेंथ। यू नीड टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ इन योर बिजनेस। अच्छा, वो स्ट्रेंथ जरूरी नहीं कि वो आपके कोर प्रोडक्ट में हो, वो आपके प्रोसेस में भी हो सकती है। लेट्स सपोज कि अगर आप ये बोलते हैं कि आप मुझे बताएं कि जो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो ऑनलाइन वेजिटेबल्स या मीट सेल कर रहे हैं। अरे, वेजिटेबल्स और मीट तो हर कोई सेल कर रहा है, उसमें ऐसा क्या ब्रांड बन सकता है, उसमें ऐसा टेस्ट क्या हो सकता है? द सर्विस दैट दे आर गिविंग, द एक्सपीरियंस दैट दे आर गिविंग इज समथिंग डिफरेंट। दैट इज देयर वैल्यू प्रोपोजिशन, दैट इज द की रिसोर्स कि जो वो उनको अलग बनाती है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द की रिसोर्स इन योर बिजनेस। अगर मैं डिफरेंट ब्रांड ग्रोसरी स्टोर, अगर मैं ऑनलाइन मैं चला रहा हूँ और मैं डिफरेंट ब्रांड्स ऑनलाइन मेरे पास आए हुए हैं, और उनके ब्रांड्स में लिस्ट करके, फॉर एग्जांपल टपाल टी है, ठीक है, लिप्टन टी है, ऑलपर्स का मिल्क है, ईवा का ऑयल है, डालडा का घी है, ये सब प्रोडक्ट्स मैंने अपने पेज पे लगा दिए हैं। अब मैं वो जो बेच रहा हूँ वो तो वही प्रोडक्ट्स होंगे जो मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। Why people are buying from me? Because I am giving them a different level of service. ठीक है, मैं कोई डिस्काउंट ऑफर कर सकता हूँ उनको, ठीक है, मैं उनको कोई एक ऐसी डिफरेंट चीज दे सकता हूँ कि लोग मेरे पास आए। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर की रिसोर्सेज, कि आपके पास ऐसी क्या रिसोर्स है कि लोग तमाम चीजें, अदर कंपटीशन छोड़ के आपके पास आएंगे, वो तमाम रेस्टोरेंट छोड़ के आपके पास आएंगे। व्हाट इज द कन्वीनियंस, व्हाट इज द की यूएसपी दैट यू आर ऑफरिंग टू योर कस्टमर्स? आपका वैल्यू प्रोपोजिशन और की रिसोर्स माइट बी अ लिटिल बिट सिमिलर, लेकिन वैल्यू प्रोपोजिशन इज विद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कस्टमर्स, कि कस्टमर को क्या वैल्यू परसीव हो रही है। की रिसोर्स के आपका इंटरनल काम है कि आप ऐसी इंटरनल उनको क्या चीज आपके पास स्ट्रेंथ है कि आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं।
लेट्स सपोज के आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्लीट ऑफ राइडर्स एट माय प्लेस, तो मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि आप ऑर्डर करो, आपको विद 30 मिनट्स आपके पास पहुंचेगा. दैट इज द की USP that I am giving to the customers. So you need to identify what are your key resources. अगर कोई एग्जांपल देना चाहे तो मोस्ट वेलकम अपने बिजनेस में कि उनके बिजनेस की, उनके स्टार्टअप की क्या रिसोर्स बन सकती है. व्हाट कैन बी द USP ऑफ देयर स्टार्टअप, ऑफ देयर बिजनेस, ऑफ देयर ऑनलाइन सेटिंग. ऑनलाइन चीजें तो बहुत लोग बेच रहे हैं. अगर आप टी शर्ट, एक ही टी शर्ट 10 जगह ऑनलाइन बिक रही होती है. सब जो है वो जनरल मार्केट सदर से उठाते हैं और ऑनलाइन बेच रहे होते हैं. हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपटीशन? यू नीड टू आइडेंटिफाई इट. अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया और आज आपका बिजनेस चल भी रहा है, आने वाले कुछ दिनों में कंपटीशन आएगा, अपने आप को डिफरेंशिएट करवाएगा और आपका कस्टमर लेके चले जाएगा. यू नीड टू आइडेंटिफाई योर की रिसोर्सेज. आपका क्या की रिसोर्स है? ठीक है. हम अक्सर बोलते हैं कि बिजनेस बड़ा चल रहा था हमारा, लेकिन बिल्कुल. अच्छा देखिए, क्वालिटी अगर हम बात, मिस आयशा ने बोला क्वालिटी कैन मेक यू डिफरेंट. क्वालिटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि इफ यू आर अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, क्वालिटी इस्तेमाल करने के बाद पता लगेगी, उससे पहले कैसे पता लगेगा? लेट्स सपोज आई हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट. अब अगर हम बात करते हैं कि उसकी जूम की बात करें, एवरीबडी इज यूजिंग जूम. मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई ऑनलाइन यूज करता हूँ, लेकिन जूम को लोग तो आज सब जानते होंगे. कोई और नया स्टार्टअप आता है जो जूम से बहुत अच्छा हो, लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूंगा कि मेरी ऑनलाइन सेशन हो रहा है 2 घंटे का, उसमें पहले मैं ट्रायल एंड एरर करूं, किसी को पता नहीं वॉइस क्वालिटी कैसी होगी, या वो काम आगे हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा. तो आई वुड बी यूजिंग जूम ओनली, क्योंकि उस पर ट्रस्ट डेवलप हो गया है. तो आप जो क्वालिटी की बात कर रही हैं, जब मैं यूज करूंगा उसके बाद फिर पता लगेगा. तो व्हाट इज दी प्रायर टू द क्वालिटी चीज ऐसी आप मुझे ऑफर करेंगी या वो करेगा मुझे प्रोडक्ट कि जो मुझे पता लगे कि मैं ये यूज करूं. आई एम श्योर कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो जूम से क्वालिटी में बहुत अच्छे हो, बहुत सस्ते भी हो, लेकिन नोबडी इज ट्रस्टिंग देम. वजह क्या है? क्योंकि हम ये वो यूज करना नहीं चाह रहे. क्वालिटी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो बहुत बाद में वो चीज डेवलप होगी. आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगेगा हाँ यार इस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी अच्छी थी, और अब जाके मैं इसमें शिफ्ट कर रहा हूँ. Okay, moving on to our seventh point, that is the key activities. Key activities पे आते हैं. What are the key? अगर किसी को सवाल है, they can write on the comment section, chat section. तो मैं उसको हम identify कर लेंगे. किसी को सवाल, किसी को सजेशन, मोस्ट वेलकम. आप लोग चैट सेक्शन में ले सकते हैं. ओके, की एक्टिविटीज में अगर हम इसको आसान अल्फाज में लिखें तो आएगा आपके डे टू डे एक्टिविटीज या आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज. इसमें आएगा आपका कि की अगर एक्टिविटीज की बात करते हैं, व्हाट आर दी एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू परफॉर्म टू अचीव द वैल्यू दैट यू हैव प्रपोज्ड टू योर कस्टमर्स. आसान अल्फाज में इसको रखते हैं कि आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी आगे लेके जाना चाहेंगे कि आपकी डे टू डे जो भी एक्टिविटीज उस वैल्यू को अचीव करने के लिए, आपकी डे टू डे कोई भी एक्टिविटीज उस वैल्यू को अचीव करने के लिए जो आप परफॉर्म करेंगे, दैट इज द की एक्टिविटीज. उसमें आपके ऑपरेशन एक्टिविटीज आ सकती हैं, उसमें आपकी व्हाटएवर द टास्क यू आर गोइंग टू डू उसमें शामिल हो जाएगा. हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं. जस्ट वेट अ मोमेंट, यहाँ पे लाइट चली गई है. लेट मी चेक इफ द इंटरनेट इज वर्किंग और नॉट. Just give me 2 minutes. I'll just bring the internet, और मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लूंगा क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे लाइट चली गई है. क्या अभी लाइट चली गई?
कैन यू हियर मी नाउ? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके, परफेक्ट। और मेरी स्क्रीन भी वही शो हो रही है जो पहले शो हो रही थी, और बिजनेस कैनवस मॉडल शो हो रहा है उसमें? परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। बस ठीक है, ग्रेट। मैं वापस ओपन कर लेता हूँ अपनी फाइल। ओके, सो लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। तो हम क्योंकि यूनिवर्सिटी कराची में बैठे हैं तो यहाँ पे वी डोंट हैव एनी जनरेटर्स। तो फॉर्चुनेटली आई हैड माय लैपटॉप विद मी, तो मैंने उसमें कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे लाइट जा चुकी है। नो इश्यूज। तो हम बात कर रहे थे की एक्टिविटीज की। की एक्टिविटीज वो डेली एक्टिविटीज हैं जो कि आप परफॉर्म करेंगे टू अचीव द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गिव टू द कस्टमर्स। इसको आसान अल्फाज में ये रखते हैं कि आपकी डे टू डे जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, कि उसमें ऑपरेशंस आ गए हैं, उसमें आप कस्टमर्स को कॉल्स कर रहे हैं, कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, आप जो है वो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, आप जो है वो अपनी टीम से मीटिंग्स कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज आपकी जो होंगी उस वैल्यू को अचीव करने के लिए फॉर द कस्टमर्स, आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो ऑल द एक्टिविटीज, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें हम एग्जांपल लेते हैं किसी ऑनलाइन बिजनेस की। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो हम इसमें रखेंगे कि अपने सप्लायर से इंटरेक्शंस, ये सप्लायर से जो प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, कि उसमें हम लिस्ट डाउन कर लेंगे कि हमारे को डेज होने चाहिए, लेट्स सपोज के पेमेंट के डेज या उनसे प्रोडक्ट रिसीविंग के डेज, उनसे इंटरेक्शन करनी है, ऑर्डर कब प्लेस करना है, कस्टमर को कब हमें इन्फॉर्म करना है, कस्टमर को कितना हमने टाइम देना है कि उनको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, अपने डिलीवरी गाय से बात करना, हमारे प्रोडक्ट को अगर आप प्रोडक्शन में है तो आप उस प्रोडक्ट को बनाना, तमाम चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। तो अगर कोई ऐसा काम डिले हो रहा है, कोई चीज़ सर्विस फेलियर आ रहा है, तो आपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन रखना है कि हाउ आर यू गोइंग टू डील विद द कस्टमर्स, तो उनको कैसे इन्फॉर्म करेंगे। तो जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होंगी वो तमाम इसमें आ जाएंगी। इसमें हम एग्जांपल और ले लेते हैं, रेस्टोरेंट की ले लेते हैं। ये रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो मतलब द फूड दैट यू आर गेटिंग ऑन योर टेबल, जो आपको आधे घंटे मिल जाता है, उसके लिए पूरे पूरे दिन की मेहनत होती है कि आपके पास मीट आता है, उसको आप कटिंग करते हैं, उसको मैरिनेट करते हैं, उसको फिर आप आप उसको एक प्री एक कुक करते हैं फॉर दी कस्टमर्स के, उनको वो जल्दी वो चीज़ मिल जाए। तो ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑपरेशंस की, वो तमाम एक्टिविटीज़ आपने लिखनी है इसके अंदर। वो तमाम एक्टिविटीज़ में आएंगी ऑन हाउ टू गिव द कस्टमर्स द परफेक्ट फीडबैक। अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है, वो टेबल क्लॉथ आपने रखा हुआ है वो गंदा हो गया, तो उसी वक्त उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास बैकअप चीज़ें मौजूद हों। इसी तरह अगर आपके पास, अगर कस्टमर के पास कोई प्रोडक्ट फेलियर आ रहा है, तो आपके पास बैकअप पे कोई ऐसा प्रोडक्ट मौजूद हो कि उसको आप देंगे वापस। कोई अगर आप कस्टमर की सर्विस अच्छा नहीं गया, तो उसको आप एज अ गुड जेस्चर को चीज देने के लिए आपने एक सूप या आपने कोई चाय तैयार कर ली कि भाई कि आपने अलग से रखी हुई है कि हम उनको फौरन गर्म करके कस्टमर्स को चाय दे देंगे एज अ गुड जेस्चर के, सर हमारा डिले हो गया है और हम आपको चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑल दोज एक्टिविटीज दैट यू आर गोइंग टू डू इन योर बिजनेस, वो तमाम चीजें इसमें आप मेंशन कर लेंगे। तो ये तो आप इसमें बहुत एक्सपर्ट होंगे क्योंकि तमाम लोग ऑलरेडी इस बात इसमें काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। नाउ कमिंग टू दी एट पार्ट, दैट इज द की पार्टनर्स। एट पार्ट में आएगा कि इसमें मेनली आएगा आपके, अगर हम बात करें एक वर्ड में, अगर इसको हम सम अप करते हैं तो वी हैव स्टेक होल्डर्स की। अगर हम बात करें स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर आर योर की पार्टनर्स। स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो अब आपके बिजनेस से जुड़े हुए हर वो एंटिटी के जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इज योर स्टेक होल्डर, इज योर की पार्टनर। उसमें सबसे पहला आपका आएगा, आपके कस्टमर से पहले भी आएगा, कस्टमर से पहले आपका सप्लायर आएगा, कि जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, आपके जो है, आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना। अगर आप कोई लेट्स सपोज के फिनिश प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं, तो आपको वो स्कार्फ सप्लाई करने वाला, वो आपके प्री मेड कपड़े सप्लाई करने वाला वेंडर, दैट इज योर की सप्लायर। ठीक है, अगर आप कोई चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाला इज योर की सप्लायर, इज योर स्टेक होल्डर। अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो उसमें मीट सप्लाई करने वाला, सॉसेस सप्लाई करने वाला, ऑयल सप्लाई करने वाला, अगर आप बारबेक्यू करें तो कोल सप्लाई करने वाला। सिमिलरली कस्टमर्स के लिए जो आप चीज बनाएंगे उसको पैकेजिंग में कन्वर्ट करने के लिए पैकेजिंग सप्लाई करने वाला, ये तमाम आपके की पार्टनर्स हैं। क्योंकि अगर इनके पास सर्विस फेलियर आता है तो आपका बिजनेस भी फेल होने के लिए खतरा है। लेट्स सपोज कि अगर पैकेजिंग के अंदर अगर किसी
वेंडर ने आपको ऐसा पैकेजिंग प्रोवाइड कर दिया जिसमें कोई होल था और आपने चेक नहीं किया है, और कस्टमर के पास वो चीज पहुंचती है और वो तमाम चीजें उसमें लीक हो गई, तो नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम दैट पैकेजिंग वाला, everybody is going to blame your brand, your food, your business, क्योंकि आपने वो मेक श्योर करना है कि ऐसे राइट आपने पार्टनर्स ढूंढने इसको ना दे सके। तो सबसे पहले आपने क्या किए कि यू हैड कस्टमर्स, उसके बाद आपके सबसे पहले आपने जो आइडेंटिफाई किया है दैट इज योर की सप्लायर्स जो आपको चीज सप्लाई कर रहे हैं, वो आपके स्टेक होल्डर्स होंगे, वो आपके की कस्टमर्स की पार्टनर्स। फिर आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी आर यूजिंग जूम फॉर आवर ऑनलाइन सेशंस, तो one of our customer stakeholder are key partners, जिनकी वजह से हम अगर इस आएंगे ओके, सो ये सब आपको की जो है वो स्टेक होल्डर्स और आपके पार्टनर्स बन सकते हैं। माय कनेक्शन अनस्टेबल, यहाँ कनेक्ट से हो नहीं रहा है, मैं फिर से ट्राई होपफुली यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, हम शेयर करते हैं, मुझे कोई और बिजनेस की एग्जांपल दे, आई वुड बी शेयर लव टू शेयर मोर एग्जांपल्स विद यू। तो कोई अगर एग्जांपल्स शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अपने बिजनेस के बारे में बताएं तो मैं उसी से रिलेटेड कोई ना कोई एग्जांपल शेयर करूंगा। अगर हम बात करते हैं कि ऊबर की बात करते हैं, तो ऊबर का जो की पार्टनर्स, उनका जो गूगल मैप है दैट इज द की पार्टनर, सबसे बड़ा पार्टनर तो वो है। अगर वो लोकेशन सही से गाइड ना करे तो राइडर्स जो कैप्टन्स हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। सिमिलरली कस्टमर्स के लिए ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर उनके पास पिन लोकेशन के लिए सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव, अगर हम कस्टमर्स की बात करें, की पार्टनर्स की बात करें, तो हम अगर हम ऊबर की बात कर रहे थे तो ऊबर के फिर जो जितने भी ऐसे वेंडर्स जो गाड़ी उनको दे रहे हैं तो वो उनके की पार्टनर्स हो सकते हैं। इसी तरह उनके कोई ऑनलाइन पार्टनर्स भी हो सकते हैं कि जिनके थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली आपके की पार्टनर्स में से कोई ऐसे सोशल इदारे भी हो सकते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट करने को तैयार है या वो यूज करने के लिए तैयार है। इफ अ कम्युनिटी इज टेलिंग कि वो आपका प्रोडक्ट यूज कर रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी आगे हो रही होती है। तो so far we have discussed कस्टमर सेगमेंटेशन, हम उनको क्या वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं। सेकेंडली, थर्डली हमारा है कि किस चैनल्स के थ्रू उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हमने फोर्थ डिस्कस किया है कस्टमर रिलेशनशिप्स। फिर हमने बात की है अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स की। फिर हमने बात की है की रिसोर्सेज, यूएसपी हमारी क्या है। फिर हमने बात की एक्टिविटीज जो हमारी डे टू डे ऑपरेशंस हैं, डेली एक्टिविटीज हैं। Afterwards, we have discussed key activities के बाद हमने key partners को आइडेंटिफाई किए हैं कि कौन से ऐसे पार्टनर्स हमने ऑनबोर्ड करने हैं जो हमारे बिजनेस को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। लास्टली हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हम वापस से रैप अप करेंगे चीजों को। आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस, आई विल बी डिस्कसिंग मोर एग्जांपल्स विद यू सो दैट दिस one page business plan is inculcated within your lifestyle, और जो भी चीज आप सोच रहे हो वो उसको आप एक्सेप्ट कर सकें, अपने बिजनेस प्लान को इसके थ्रू बना सकें। आई विल बी शेयरिंग द फील्ड बिजनेस मॉडल कैनवस विद यू एज वेल, ताकि जब आप बाद में भी अगर अपना बिजनेस मॉडल बनाएं तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं कि इसका क्या क्या मतलब था, इसमें क्या चीजें इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। इन सब चीजें बनाने के बाद हम कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या आ रहा है? कॉस्ट स्ट्रक्चर में योर एक्सपेंसेस, हमने बातें बड़ी बड़ी कर ली कि हम कस्टमर सर्विस बहुत ही अलग से भी देने वाले हैं। हम जो है चैनल्स ऐसे यूज करेंगे जिसके थ्रू कस्टमर्स को एरर फ्री सर्विस मिले।
हमने बात की, हम कस्टमर को ऐसी वैल्यू देंगे कि उसको दुनिया में कहीं नहीं मिली होगी, लेकिन हम कस्टमर को एक ऐसी यूएसपी के थ्रू प्रमोट करेंगे कि जो दुनिया में कहीं नहीं होगी। लेकिन इन सब वैल्यूज को देने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इज द कॉस्ट। डू यू थिंक कि जो कोलाची एंड कबाबजी दो दरिया पे मौजूद है, वो जो कस्टमर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो आसान है? इज इट इजी फॉर देम? इट इज वेरी एक्सपेंसिव। जो छोटे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हमारे नेबरहुड में चल रहे हैं, उनकी जो सेल एक दिन की होगी, उतना तो उनका खाली और सिर्फ फ्री फूड देने का एक्सपेंस होगा। ठीक, तो गिविंग अ गुड सर्विस इज नॉट very is not free, it is very expensive, I would say. लेकिन are you going to अब हमने ये thin line draw करनी होगी। What is the optimum level of customer service? What is the optimum level of customer service? What is the optimum level of USP that you are going to give to your customers in exchange for the money that they are giving to you? तो हमने वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि हमने कि क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा। हमने तमाम विश लिस्ट बना ली कि हम कस्टमर को ये सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब हमने उसके अगेंस्ट में वो कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गिविंग द बेस्ट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स कस्टमर्स। तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है। वंस यू हैव द कॉस्ट इन हैंड, फिर आप अपने उसको रेवेन्यू के हिसाब से उसको आप मेजर करेंगे एंड देन यू कैन डिफाइन अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी कि मैं ये प्राइस जो है वो सेट कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। लास्ट 15 मिनट्स रह गए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 15 मिनट्स को मैं इसमें थोड़ा रैप अप करूँ, और उस रैप अप करने से पहले मैं आप लोगों को सवाल देना चाहूँगा कि if you have any questions regarding to this business model canvas, या अगर आपके अपने स्टार्टअप में आपके अपने किसी ऑनलाइन बिजनेस में कोई मुश्किल फेस हो रही हैं, you can discuss with me or we can definitely put a light on it as well. Open to you. जी guys, we have कितने पार्टिसिपेंट हमारे पास हैं? माशाल्लाह से we have 41 participants on board. And I'm really amazed to see the response. माशाल्लाह से आप लोगों ने बड़ा इंटरैक्टिव सेशन को बनाया है। I'm still open to questions. अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर आप लोग ऐड करवाना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट 15 मिनट्स में उसको कवर कर सकते हैं। जी तो मैं इसको रैप अप, आप जो सवाल तो सोच लें, मीनवाइल मैं इसको रैप अप करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो चीज़ें सीखी हैं, वो उसको हम क्या घर लेके जा रहे हैं। मैं हर जो है ट्रेनिंग सेशन के एंड में एक बात ये कह रखता हूँ कि हमेशा आप सोचें कि इट्स नॉट अबाउट द मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन द ट्रेनिंग। वो मोस्टली ट्रेनिंग सेशन आपको फ्री मिल जाएंगे, लेकिन आपके 2 घंटे बहुत कीमती हैं। उस 2 घंटे में आप बहुत कुछ और कर सकते थे। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट, कि आप जो है उस 2 घंटे में क्या हासिल कर रहे हैं, क्या चीज़ आगे लेके जा रहे हैं, और क्या इसमें आप आगे अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। सवाल आया है मरियम का, सर एनी सजेशंस फॉर यूनिक स्मॉल बिजनेस विद स्मॉल कॉस्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर कोई स्पेसिफिक अगर आप उससे डिस्कस कर लें कि कोई एग्जांपल मुझे बताओ तो मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगा। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी यूनिक स्मॉल बिजनेस विद स्मॉल कॉस्ट स्ट्रक्चर, देखिए जब कोई बहुत यूनिक प्रोडक्ट होता है ना, तो उसको सेल करना बहुत आसान भी होता है, बहुत मुश्किल भी होता है। क्योंकि आई नो कि यूनिक अगर है, अगर यूनिक प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर ली फॉर द कस्टमर्स, तो इट इज़ वेरी इजी टू कम्युनिकेट। यू कैन, हम जो हमने लास्ट सेशन में भी एक चीज़ हमने अंडरस्टैंड की थी, वो है द लीन स्टार्टअप मॉडल। उसमें ये है कि वो ये बोलता है कि आपने कोई भी काम करने के लिए पहले 10 कस्टमर्स खुद लेकर आना है। पहले 10 कस्टमर्स आपने खुद लेकर आना है, उसके बाद आप जो है वो आगे किसी मॉडल के थ्रू उसको मार्केटिंग करवाएं। क्योंकि देखिए आपके अपने नेटवर्क में बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जो आपको जानते होंगे।
अगर वो लोग आपके जानने वाले लोग इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, अगर वो उस यूनिकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो उस यूनिकनेस को अगर वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उसको वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट? क्योंकि एट टाइम ऐसा होता है कि बीइंग अ बिजनेस ओनर या बीइंग अ स्टार्टअप ओनर, मैं समझता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, लेकिन वो कस्टमर के लिए वैल्यू नहीं बन रही होती। उस सूरत में होता क्या है कि उसमें आप कहीं भी नहीं जा पाते। मैं से एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरा जो पहला स्टार्टअप था दैट वाज बुक वर्म। हमारा था कि हम रीडिंग कल्चर को प्रमोट करेंगे, हमारा बुक स्वैप ऐप हमने बनाई थी। हमें लगता था कि बहुत ही इनोवेटिव है, और नो डाउट पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा था वैसा काम, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि हमें ये चीज आइडेंटिफाई हुई कि हम जो चीज हमने बनाई है वो यूनिक तो है, आप, लेकिन वो कस्टमर के लिए वैल्यू नहीं है। यूनिक होना और कस्टमर के लिए वैल्यू होना, दैट इज टू डिफरेंट थिंग्स। यूनिक होना कोई बड़ी बात नहीं है, कस्टमर के लिए वैल्यू होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हमने कस्टमर की वैल्यू को हमने मद्देनजर नहीं रखा, और हमने प्रोडक्ट बना दी, और नोबडी वाज विलिंग टू यूज दैट प्रोडक्ट। ऑल्दो हमें लोगों ने बड़ी तारीफें की, हमारा डिफरेंट जगह नाम आया, लेकिन कस्टमर्स वाज नॉट विलिंग टू यूज दैट प्रोडक्ट ड्यू टू मेनी रीजंस। कस्टमर्स का इंटरेस्ट ही नहीं था बुक्स पढ़ने में, तो उनके लिए वो वैल्यू नहीं थी। तो सबसे जो आपने फोकस करना है कि यूनिकनेस से ज्यादा फोकस करना है कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्या आप दे रहे हैं। इफ यू आर गिविंग द राइट वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, आप वो स्मॉल कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी उसको मार्केट कर सकते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन मरियम। सो आई विल रैप इट अप। हमारे पास हमने 9 की कंपोनेंट्स पे बात की है फॉर द बिजनेस मॉडल कैनवस। अगर आपको कोई भी बिजनेस मॉडल, अगर आपको कोई भी बिजनेस आइडिया का, कोई स्टार्टअप आइडिया का, अगर आपको एक पेज में बिजनेस मॉडल बनाना है, तो आपको इस 9 कोर फंक्शंस में काम करना होगा। पहली चीज है द कस्टमर सेगमेंट्स। यू नीड टू आइडेंटिफाई who is your target market, what is your customer segmentation। उसके बाद आप उन कस्टमर्स के लिए क्या वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं, उन कस्टमर्स को क्या वैल्यू आप दे रहे हैं। thirdly, the channels that you're using to give the value to the customers, कि वो channels कौन से यूज करेंगे, what is the medium, what is the delivery setting, what is it the online, it is physical, वो कौन से आप medium यूज करेंगे to give the value to the customers। fourthly, you'll target on the customer relationships, कि कस्टमर की जो जर्नी है फ्रॉम ऑर्डरिंग, जो उसने आपका पहला ऐड देखा है, उसके बाद ऑर्डर किया, उसके बाद उसने वेट किया, उसके बाद वो प्रोडक्ट रिसीव किया, उसके बाद वो प्रोडक्ट यूज किया, इस पूरे रिलेशनशिप के अंदर आपका क्या रोल होगा। यू नीड टू राइट इट डाउन वेरी क्लियरली। उसके बाद फोर्थ आपने फोकस करना है, फोर्थ आपने कस्टमर रिलेशनशिप पे फोकस कर लिया। नाउ द फिफ्थ इज द रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कि आप उनसे क्या रेवेन्यू चार्ज करेंगे, व्हाट आर द मीडियम ऑफ द रेवेन्यूज। आर यू गोइंग टू गिव द प्रोडक्ट फॉर फ्री फॉर द कस्टमर्स और अर्न फ्रॉम द एड्स। जिस तरह के किसी ने पूछा था कि हम अगर यूट्यूब चैनल उसको कैसे करेंगे, तो उसमें आप कस्टमर चार्ज नहीं कर सकते, आप कस्टमर को फ्री देंगे और फिर आप स्पॉन्सर से चार्ज करेंगे। दैट इज द रेवेन्यू स्ट्रीम दैट यू आर गोइंग टू प्लान in the future। Sixth are the key resources. What is the USP? What are your strengths in your business? या आपके अपने नेटवर्क में क्या strengths हैं जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके आगे जा सकते हैं। Seventh, key activities. What will be the day-to-day activities that you are going to perform? उसमें तमाम वो चीजें जो अपने बिजनेस के लिए आप कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप के लिए आप कर रहे हैं, उसमें कस्टमर से इंटरेक्शन करना, सप्लायर से बात करना, प्रोडक्ट को बनाना, सब कुछ उसमें शामिल होगा। 8 is your key partners। की पार्टनर्स में आपके तमाम वो स्टेक होल्डर्स जो आपके बिजनेस से लिंक्ड हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, स्टार्टिंग विद द सप्लायर्स, कि अपना आप प्रोडक्ट, अपनी रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेंगे। कस्टमर्स, योर मीडियम पार्टनर्स, उसमें ऑनलाइन जूम वगैरह सब आपके की पार्टनर्स बन सकते हैं। 9th इज अ कॉस्ट स्ट्रक्चर। इन तमाम चीजों के लिए करने के लिए क्या खर्चा आ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट, वो आप इसमें राइट डाउन करना है। फिर इस कॉस्ट और रेवेन्यू को देखते हुए आपने प्रॉपर प्राइसिंग मॉडल आपने आइडेंटिफाई करना होगा, एंड ओनली देन यू कैन पिच द आइडिया इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स। यू कैन have a right track for your business, you can have the right product for your customers। So this is it from my end। I hope आप सब लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ से मिला होगा, और I would recommend कि आप लोग feedback दें on the feedback form that is shared by the workshop circle के नाम से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बिजनेस, अपने स्टार्टअप्स को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि स्टार्टअप्स
ही जो है वो आपको आगे लेके जा सकते हैं और रेवेन्यू को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी बिजनेस और जो हमारा माइंडसेट है ना कि फ्रॉम बीइंग जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर हमने बिल्ड करना है. Thank you very much for your time. Thank you very much for your participation. Thank you, Circle, for everything. Thank you very much. Thank you so much for this informative, insightful, and detailed session, Tala. It was a very pleasant contribution to our program. I'd like to thank the students who attended the session, our sponsor FNF, and of course you. The audience was pretty good. हम अभी भी कुछ सवाल ले सकते हैं. If anyone has any questions, I've also shared the feedback form in the chat. अगर आप लोगों के कोई feedbacks हैं तो हमसे please share करें. Thank you so much for the session again. Welcome. All right, so assuming there are no more questions, I think we're going to end the session here. Thank you, Tala. Thank you so much for your time. Allah Hafiz. Allah Hafiz.